Sort of a quick fight. Looking on the center. So welcome to movie Mera. It's so hard for me to look at the center. Why can't you go there? Okay. Thank you so much for having me. I'm happy to be here. Salman Khan recently quoted saying that Sonam Kapoor is a better actress than Madhuri. What is your take on that? He was joking. He's just trying to promote his film. I'm nowhere close to even as good as her. Anything else? You're all set for the Q&A. Rohan is going to grill you maybe. Yeah, I don't. I mean, he's gonna grill me, and maybe I'll also grill him back. It's all about movies we are talking about. So which is your favorite 3 movies this year? Because it's almost end of the year. One Yeah. more to go. The 3 movies this year. What are the 3 movies this year that are? You know, right now my brain is a bit fried because I've just taken a flight from Delhi, so I can't think. Tanu Manu 2 released this year, right? I thought it was brilliant. Also, I love watching Anand Sir's films. That's Gen Next, guys. And which other film released here? Shall I name some? Badlapur, Piku, all of them. They're all great, brilliant films. Peace to you. Peace to you. Thank you. Thank you. Sir, you thought of having Mr. Bachchan in this movie. Can you throw some light? Did you discuss the movie I with think him? Javed Sahib is the right person to answer that. Javed, sir. Sir. Sir, yeah. So you just Silence. Yeah. so you just said that you thought of having Mr. Bachchan for this movie. Can you throw some light on that and give us some details? Did you discuss the idea with him, or why was the idea dropped? Well, what happened that it was just an idea, and the idea came. I mean, at the cost of repeating myself, because I don't know whether you were there or not. I'll tell you this little story that a film was being started by Mr. Pramod Chakravarti, and Amitabh Bachchan was the leading man, and as luck would have it, he was in outdoors. So they took first shot of a tape recorder and his voice was played. That was the Muhurat shot. And when I read this, I was rather amused, and I thought, all right, if his voice can cause a Muhurat, his voice can be used in the whole film also. So that is where this idea of Invisible Man came. But then what happened, that before it could become any kind of a reality, Salim Saab and I went our own ways, and this storyline was left with me. And then it was developed, so things had changed that time. The whole situation was changed. And I spoke to quite a few producers and gave them the idea, and everybody liked the idea, and wow, yeah, it's interesting. But they were too scared to make the picture. Because you see, today, perhaps it's very easy with technology and CG and so on and so forth. But at that time, we did not have such facilities. So it was really a kind of a uphill task to make this kind of a film. But then Mr. Boni Kapoor, what they say, bit the bullet and accepted that, all right, I'll take this challenge. And that's how the film was made. जावेद साहब फिल्म के सारे किरदार बहुत ही अच्छी तरह से लिखे गए थे, काफी किरदार मजेदार। आपका फेवरेट कैरेक्टर अगर पूछा जाए फिल्म का तो कौन सा होगा? देखिए, तो कहना मुश्किल है, इसलिए कि वो किरदार इंटरेस्टिंग इसलिए होता है कि उसके साथ दूसरे किरदार होते हैं। आप अलग निकाल के एक को नहीं कह सकते कि इंटरेस्टिंग हो। कोई भी जो अच्छी फिल्म होती है, मैं ऐसा बिलीव करता हूँ, राइटली और रॉन्गली, कि फिल्म जो की सक्सेस है वो अपनी कहानी के टर्न्स एंड ट्विस्ट पे नहीं होती है। इसलिए कि आपने एक बार पिक्चर देखी तो टर्न एंड ट्विस्ट तो मालूम हो गया आपको। फिल्म की सक्सेस जो है वो अल्टीमेटली उसके कैरेक्टर्स पे होती है, कि अगर आपको वो कैरेक्टर जो हैं, जिसमें ऑब्वियसली इट इज़ नॉट ओनली द कैरेक्टर इज़ नॉट ओनली ऑन पेपर, उसमें फिर एक डायरेक्टर शामिल होता है, उसमें अल्टीमेटली एक्टर शामिल होता है। आई फील एक्टर्स आर इन फिल्म लाइक सेंटर फॉरवर्ड्स इन अ फुटबॉल टीम, दैट अल्टीमेटली यू मे pass the ball, bring it to the deep, ultimately it is the center forward who will kick the ball in. तो वो जो लास्ट आदमी जो कन्वे करने वाला है वो एक्टर है। तो
वो कैरेक्टर जो आपने लिखा है, जिसे डायरेक्टर ने समझा है, फिर एक्टर को दिया गया है, तो उसने कैसे इसे परफॉर्म किया, वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन फिल्म जो आइकॉनिक बनती हैं, फिल्में जो लोगों को याद रहती हैं, जिन्हें वो बार बार देखते हैं, वो अपने कैरेक्टर्स की वजह से देखते हैं, कहानी की वजह से नहीं। कहानी तो एक बार पता चल जाती है, लेकिन जैसे अच्छे आदमी से आपको बार बार मिलने को दिल चाहता है, जो आदमी आपको इंटरटेन कर रहा है या आपको सिंसियर लगता है, उसी तरह उन कैरेक्टर्स को देखने को बार बार दिल चाहता है। और इस पिक्चर में जो कैरेक्टर थे, वो मिस्टर इंडिया हो, वो सीमा सोनी हो, वो मुगेम्बो हो, वो कैलेंडर हो, एंड ईच ऑफ दिस चिल्ड्रन, देखिए उस पिक्चर में कितने सारे बच्चे थे। आज हमें अहमद क्लियरली याद है, आफ्ताब क्लियरली याद है, ये बच्चे क्लियरली याद है कि इसका क्या शॉट था, क्या क्लोजअप था, किसने कैसे डांस किया, बिकॉज दे वर अलाइव. And perhaps that is the strength of the film, that after 30 years we are sitting and talking about it, because those characters became alive, real. So character, the editor, played by Anu Kapoor. तो ये जो है, इसमें जो है स्क्रिप्ट का भी क्रेडिट है, इसमें डायरेक्टर का भी क्रेडिट है, उसने कैसे कैप्चर किया, और इसमें उन एक्टर्स का भी क्रेडिट है जिन्होंने इसको ये परफॉर्मेंस दिया. बोनी सर, 2 की तैयारियां कैसी हैं और कब तक, क्योंकि कई दिनों से चर्चा का विषय है कि मिस्टर इंडिया 2 बन रही है, तो आप प्लीज़ थोड़ा इस पर लाइट डालें. तैयारी तो यूं है कि हम तैयार हैं करने के लिए, पर एक अच्छा स्क्रिप्ट बन के सामने आए. जैसे हमने पहली मिस्टर इंडिया बनाई थी, एक थॉट था, एक आइडिया था, एक जो स्टोरी लाइन थी जावेद साहब ने सुनाई थी, जिससे हम सब एक्साइट हो गए थे. तो जिस दिन सीक्वल की कोई ऐसी लाइन आएगी तो डेफिनेटली विल जंप इनटू इट. एंड हमारी पूरी कोशिश है, बल्कि एक पक्का इरादा है कि इसका सीक्वल बनाएंगे और ज़रूर बनेगा. और अभी 30 साल हो गए हैं, थोड़ा इन्हें और घूम लेने दीजिए, वापस आ जाएंगे, फिक्र नहीं कीजिए. फिर इनका सीक्वल बनेगा. वेल, यू सी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट. एज ही सेड कि मैं अभी घूम रहा हूँ, जब एक जगह पहुँच जाऊँगा तो ये हर चीज़ की क्लैरिटी आ जाएगी. अगला सवाल अरुण भैया से है. अरुण भैया, अगर आप इस युग में 2015 में अगर उस रूप में वापस आए तो गायब होकर के क्या करना चाहेंगे एग्जैक्टली? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं गायब तो हो नहीं सकता और गायब होना भी नहीं चाहता, मगर इस युग में अगर बस मेरा तो हमेशा यही रहा कि सबका मनोरंजन करूं और एंटरटेन करूं और लोग हंसते रहें और खुश रहें और पीसफुल रहें. बुराई का खात्मा किया था आपने मोगेम्बो जैसे इंसान का. इस 2015 में कोई ऐसी चीज़ है जिसका खात्मा करना चाहेंगे इंडिविजुअल होकर? बस पीस, दैट्स, मैंने सारी बातें आपसे कही थी कि सबको, सब हंसते रहें, खुश रहें और मनोरंजन हम करते रहें. Anil sir. Well, as Boniji mentioned, I mean, it all depends on the subject. You know, it's too early to, and he's the producer of the film. He will decide. Anil sir. यार, इतना लंबा आपका सवाल है, इसका जवाब क्या? सवाल समझने में कोई घंटा भर लग जाएगा. एक ब्रीफ सवाल पूछो ताकि ब्रीफ जवाब मिले आपको. आपको स्क्रीन पे डर दिखाई दिया था, एप्रिहेंशन दिखाई दिया था. शी इज ऑलवेज बीन कॉन्फिडेंट एंड शी डिड इट कॉन्फिडेंटली एंड स्पॉन्टेनियसली. Well, this is the baggage that we are carrying, not just Mogambo. I mean, there are so many iconic characters in the film. So this is the baggage that we are carrying, and that's the reason it hasn't yet formed clearly in our minds. The day it is, obviously, all these things will be kept in mind. Anil sir.
अब ये तो कहना मुश्किल है, आइडिया कैसे आया, वही ज़रूरत होती है तो होता है। अब देखिए वो क्या होता है कि अगर कोई दवा पी रहे हैं तो उतना अच्छा शायद विजुअल नहीं लगेगा, लेकिन ये कि अगर हाथ पे एक बैंड बटन दबाया तो दैट लुक्स स्मार्टर। तो ये सब बातें होती हैं। और जो अभी मोगेम्बो की बात कर रहे थे, तो उसमें इनको एक ऐसा राइटर ढूंढना पड़ेगा कि जिसमें बहुत सेडिज्म हो और ईवल थॉट्स अच्छी तरह से उसके पास आती हों, तो वही ये कैरेक्टर क्रिएट कर सकेगा मोगेम्बो की टक्कर का। तो अब आप सोच लें। Anil sir, when you were narrated this story, इससे पहले कि मैं इनको माइक दूँ, एक आपको चीज़ बताता हूँ। मिस्टर ने में एक मोन्टाज था हमारा, सतीश कौशिक साहब डायरेक्टर कैसे बने वो बताता हूँ मैं। एक मोन्टाज शूट करना था जहाँ पे एक पर्टिकुलर फैमिली खराब अनाज खा के जिसके घर में एक डेथ हो गई है, तो शेखर था, मतलब ही वॉज बिजी एडिटिंग। तो नॉर्मली जो चीफ एडी होता है उसको दिया जाता है तुम इधर का एक क्लोजअप ले लो, इधर का ये ले लो। तो मोन्टाज सतीश साहब ने शूट किया था और मैं उस मोन्टाज से इतना खुश हुआ था, जावेद साहब से भी मैंने बात की, अभी शेयर्ड अमंग्स असेल, यार ये इसमें डायरेक्टर बनने की क्वालिटी है, क्योंकि जो औरत धाई मार के रोई थी वो कमाल का सतीश साहब ने। और उसके बाद इन्होंने अपने हाथ में इतना बड़ा चाकू ले लिया और अपने पेट में मारा, रूप की रानी चोरों का राजा देखे। अच्छा, क्या सवाल था आपका? देखो, व्हेन यू आर यंग यू हैव लॉट्स टू डू, यू नो। व्हेन मतलब होता है कि वो तो दो काम तो बहुत कम थे, काम तो और भी ज़्यादा हो सकते हैं। देयर सो मच पैशन, देयर वाज अ ग्रेट स्क्रिप्ट behind, there was a role which actually I snatched from a lot of actors, you know, because I was chief AD and I was sitting with Javed Saab all the time in script writing, you know, as his bounce board and as a planner, as an assistant director. So for me, both the things were exciting. Doing calendar was much more exciting than chief assistant director, because Boni really, you know, used to allow me to come on sets, you know. He will take me to for other planning or something. We used to enjoy. I used to enjoy. और अपनी shooting पे फिर मैं आ जाता था समय. But yes, I used to be with him with all the planning. Set बनना है, मतलब आगे का काम कैसे होना है. And then calendar की जब shooting होती थी, तो मैं पहुंच जाता. I remember my first day shoot, you know, because वो ये था कि मैं script में साथ-साथ लिख रहा था, तो मैं चाह रहा था किसी तरह, आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड एक्टर ऑल्सो, यू नो, रोल मिल नहीं रहे थे, तो क्या चाहता था कि किसी तरह से रोल मिल जाए इसके अंदर। तो वो कैलेंडर का रोल जो है वो मैंने जावेद साहब को किस तरह कन्विंस कर दिया। अब पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना, कैसे कैलेंडर बना। वो मेरे एक फादर के वो डीलर थे, वो तकिया कलाम था उनका, कि वो कैलेंडर बीच बीच में बोलते थे, पंडित जी क्या बात है, 3 पेटियाँ आई और 3 पेटियों में से कैलेंडर, एक पेटी तो खराब निकली, अभी 2 लाख का बाल कैलेंडर खराब हो गया। तो कैलेंडर बीच में बोलते, कैलेंडर वर्ड वहाँ से आया, एंड दैट इज़ हाउ कैलेंडर्स नेम वॉज दिस थिंग। फर्स्ट डे शूटिंग आई रिमेंबर कि इसको थोड़ा सा फेमिनिन बनाना है, और वो परचून की दुकान पे सीन था, एंड एवरीबडी वॉज इन लाफ्टर व्हेन आई डिड दैट, यू नो, कि वो अरुण भैया चलिए घर जाना है, घर जाके खाना पकाना है, और खाना पकाने से पहले कंकड़। Anil So sir, that was great. Anil sir, this was one of its kind movie that one wouldn't have seen the subject of an invisible man. Were you a little skeptical, or were you in two minds? Did you not think it of as a risk while you were offered this project? No, I think you were not there in the. Were you there? I just want to repeat it. Obviously, at that time, obviously, you know, for all of us, a film is the most important thing. The film has to be very good. The script has to be very good, and then of course comes all the characters. The characters अच्छे होंगे तो film अच्छी होगी. तो characters भी बड़े अच्छे थे. And of course, at that moment, that stage of my career, my high was Javed Saab was writing the film, Boni Saab was producing the film, and you know, Shri was and is the biggest and the best actress of our country. And so, you know, acting opposite her was a dream for me always, and I knew that उनके साथ काम करके मुझे बहुत फ़ायदा होगा और मैं भी एक A-list हीरो बन जाऊंगा इनके साथ काम करके, इसलिए so that was the reason. You're asking me? Sorry? तो that's the reason is जल्दी बना दो. ये ज़्यादा रुकने नहीं वाला.
Well, Shekhar at this point of time is busy in Hollywood. He's doing a lot of stuff in the Western world. And you see, if you've got to make this kind of film, you've got to be totally, passionately, and absolutely involved. So you see, at that point of time, Shekhar had no other film. This was everybody's mission, not just Shekhar. Whether it was Javed Saab, whether it was me, whether it was, except the two principal actors, they had a few other films, but everybody's focus was just this film. So obviously we will need a director who has this as the top priority and this as a mission. And only then he will be able to do something which matches Mr. India or rises above Mr. India, because it would be a challenge for anybody who gets into the shoes of being a director. जावेद साहब कई किस्से थे। देखिए, जब हमने पिक्चर शुरू की थी तो हमारे एक पंजाब के डिस्ट्रीब्यूटर थे। उन दिनों में मोबाइल नहीं था और टेलीफोन पे भी ट्रंक कॉल के काफ़ी लंबा चौड़ा खर्चा होता था। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स यूज्ड टू कम्युनिकेट बाय राइटिंग लेटर्स। मुझे जो पहला डिस्ट्रीब्यूटर का लेटर आया था पंजाब के डिस्ट्रीब्यूटर का, जग्गी चोपड़ा हमारे डिस्ट्रीब्यूटर थे, कि ये टाइटल मिस्टर इंडिया क्यों रख रहे हो, इंग्लिश टाइटल की पिक्चरें नहीं चलती हैं। तो आई थॉट इट वॉज वेरी फनी थिंग, मिस्टर इंडिया टाइटल इंग्लिश टाइटल मत रखो उसको। तो उसी वक्त ध्यान में आया और मैंने जावेद साहब से जिक्र भी किया। तो हिंदुस्तान की अमंग्स द बिगेस्ट फिल्म वाज मदर इंडिया, वाज़न्ट दैट अ इंग्लिश टाइटल? दिस वाज जस्ट वन लाइनर दैट वी हैड टू सेंड हिम बैक। मदर इंडिया भी इंग्लिश टाइटल था, तो मिस्टर इंडिया में क्या बुरा है? तो दीज क्वेरीज वे देयर। डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे एक डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा, यार जावेद साहब से गाने क्यों लिखा रहे हो, वो तो गाने में पोइट्री लिखते हैं। और जब उसी डिस्ट्रीब्यूटर को पता चला कि भाई जावेद साहब ने गाने लिखे, तो उन्होंने एक लाइन की वो तारीफ की थी, करते हम प्यार मिस्टर इंडिया से। सो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, या रादर हैं, मोस्ट ऑफ देम, अभी तो खैर स्टूडियोज आ गए हैं, बट इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स दे हैव देयर ओन माइंडसेट एंड दे आर ऑलवेज फुल ऑफ क्वेश्चंस। अगर हम हर क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे तो हम शायद फिल्म नहीं बना पाएंगे। तो फिल्म तो कन्विक्शन से बनती है, चाहे वो राइटर की हो, डायरेक्टर की। इट्स ए कलेक्टिव कन्विक्शन ऑफ पीपल क्रिएटिवली इन्वॉल्व इन डूइंग द फिल्म, एक्टर्स, द एवरी facet of filmmaking involves passion, and that only can come if you're convinced about the project that you're doing. Distributors come later. They are businessmen. They only believe in numbers, and at the same time उनका benchmark होता है previous picture उस हीरो की या हीरोइन की चली नहीं हो तो कितनी भी आप अच्छी पिक्चर बनाओ तो ट्रायल के बाद आएंगे तो एक्सप्रेशन देंगे और कुछ जवाब नहीं देंगे। और अगर प्रीवियस पिक्चर चली हो तो उनको समझ आए ना आए, वाह वाह करके निकलेंगे। यही हुआ था मेरी रूप की रानी चोरों को राजा के वक्त। मिस्टर इंडिया के बाद हमने रूप की रानी चोरों को राजा बनाई थी। मैंने कई डिस्ट्रीब्यूटर को पिक्चर दिखाई तो सब लोग वाह वाह, हर डिस्ट्रीब्यूटर को अपने शहर में प्रीमियर रखना था। हर डिस्ट्रीब्यूटर ने यूँ छलांग लगा के प्राइज भी दी थी। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज दी हाई, मुझे याद है उस वक्त हमने 1 करोड़ पर टेरिटरी में पिक्चर बेची थी। और कोई फिल्म, उस वक्त कई बड़ी पिक्चरें बन रही थी। फिरोज खान साहब की यलगार थी, जेपी दत्ता की क्षत्रिय थी, अमित जी की खुदा गवाह और हम भी थी। बट दिस सेट द बेंचमार्क, दिस वाज द हाईएस्ट सोल्ड फिल्म। व्हाई? नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, ओनली बिकॉज द टीम हैड गिवन अ फिल्म कॉल्ड मिस्टर इंडिया व्हिच वाज प्रायर टू रूप की रानी चोरों का राजा। तो दिस इज देयर माइंडसेट। और हमने जब रूप की रानी के कुछ रशेस देखे थे तो उस वक्त हमने अपना विचार चेंज करने की कोशिश भी की थी कुछ गड़बड़ हो रही है, इसको कुछ चेंज करने की कोशिश करो। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो एक अलग ब्रीड है। दे आर नॉट रियली इन्वॉल्व विद द मेकिंग और कॉन्सेप्ट और कंटेंट ऑफ द फिल्म। इट्स ओनली द एंड रिजल्ट व्हिच मैटर्स टू देम। जावेद साहब और अनिल सर, आप दोनों से सवाल है कि देश में जिस तरह का माहौल है, इंटॉलरेंस बढ़ रही है, कई राइटर्स, साइंटिस्ट और फिल्म मेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपने अवार्ड्स वापस कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये विरोध करने का तरीका? पहले जानना चाहूँगा कि इसका मिस्टर इंडिया से क्या संबंध है? नहीं, एक बिकॉज एज फार एज आई नो दिस सेशन इज फॉर मिस्टर इंडिया। नहीं सर, फिल्म तो अगर आपका सवाल मिस्टर इंडिया ही के बारे में रहे तो अच्छा है। नहीं सर, फिल्म और बहुत ही अगर शौक हो तो मेरे बारे में कोई सवाल कर लीजिए। सर फिल्म मेकर्स इन्वॉल्व हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ, वो एक दूसरा टॉपिक है, वो एक बड़ा सीरियस टॉपिक है, तो सीरियसली बात करनी चाहिए। लेकिन यहाँ वी आर टॉकिंग ऑफ अ फिल्म, लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म।
Well, first of all, I believe in characters and the storylines and script and definitely then director and the producer. So वो मैं खास करके importance देती हूँ. There's a lot of buzz about Janvi making her debut in a Dharma As production. Javed Saab said, we are here for Mr. India. I think we should talk about only Mr. India. We'll talk of it once we get to that. इस वक्त सिर्फ मिस्टर इंडिया पे ही फोकस रखिए. I think Javed sir would answer that. I thought now you'll talk about me. Yeah, sorry, yeah, of course. No, it's a fact, honestly. Yes, of course, is the script, the kind of, writing Javed Saab did with Mr. India, there's not been a single script which has matched to Mr. India yet. That's the reason I feel. On a more serious note, I'll say what happens. This is one खबरदार जो उठे हिम्मत कैसे वो उठने की अच्छा तो होता क्या है this is a fatal mistake that we make that suppose we have some USP of the film. Like in the film, we have a hero who gets a formula that he can become invisible. We get so happy with that, and we become so confident of the USP that rest of the departments get neglected. Quite often it happens, and then we overuse that USP. So the law of diminishing utility applies on that too. While in Mr. India, thanks to the whole team, the fact is that in all honesty, I can't hog all the credit. That whether the characters, all the characters, the hero, the heroine, the villain, calendar, editor, every character, even the minor characters were interesting and people remember, like today, you were mentioning Karga. Each and every child, you see, if you have one child and you remember that child, it is possible. It is easy. But you have a team. How many were there? 10. 10 kids. But you remember each one of them distinctly. It means the characters made an impact. They were alive, they were real, they were interesting, they were attractive. Generally what happens that when you have this kind of a gimmick, you become so arrogant about the gimmick and so proud of it and so confident that you neglect other things. There were beautiful music, there were beautiful songs, there were superb children, there were great performances of the leading role and a great villain. So all those things, there was no department in the film which was neglected or slightly 2 rungs below. That is how a good film is made. Generally, what happens that we become so confident of one facet or one factor that other factors leave a lot to be desired. That did not happen in Mr. India. Pardon, I didn't get you. Invisible Man, was it difficult? Well, the whole film I did that. So. Well, the credit goes to Saroj Khan again, I'll say, because she really choreographed so well. Well, I just followed her, that's it. She's an excellent actress, and I'm sure she will do justice to that character.
Nani, see, they've seen the film multiple times, not just Janvi and Kushi, even Arjun and Anshula. They've grown up watching this film, and so has Janvi and Kushi. Now, let me end this. You see, Mr. India के कई चीज़ें आपको आज पता चली है, कुछ चीज़ें जो आपके सामने दोबारा में, we mentioned about Viru Devgan, we mentioned about Bijon Das Gupta, Baba Azmi, Peter Pereira. One of the other main contributor to the film was Lakshmikant Pyarelal. The kind of music they gave, the kind of passion that they showed towards this film, not just for songs, it was for the background music too. The entire background music session, or rather sessions, used to be so interesting, so involving, and you see every day we used to evolve, we used to hear something really fascinating from Pyariji, because he was so passionately involved. In fact, the entire group of musicians, they were all excited watching every scene of the film. Sometimes they used to play it again, and then he used to play the background tune on the piano, and all of us used to revel in listening to all what he was creating spontaneously there while watching the rushes there. So, as Javed Sahab said, basically iconic films are made not by one individual. It is a teamwork, and we were blessed that we had such a wonderful team. In fact, even for the promotion of the film, this was JP Singhal sir was alive, and he had designed the entire publicity campaign. Even that was talked about at that point of time. We had 12 sheet posters, we had 24 sheet posters, which were not very common for Hindi films. Now, then too, we had tied up with some pencil company for pencil boxes, rubbers. For the first time, this film was publicized hugely at the Sharjah cricket ground. In fact, when the film released, those days films used to release on a Thursday in certain areas, like in Madhya Pradesh and UP and parts of Maharashtra. Because the film was so well promoted and so much talked about, this film had opened on Wednesday night because the crowd had gathered. Wednesday night was the last show of the previous film which was running, and people had gathered at the cinema hall to watch Mr. India the next day. But because the crowd was uncontrollable, the exhibitor opened the theater right after midnight, after the previous show was over. And he ran the film round the clock. And all the shows were full. So this was the hype which was created only by the passion of the team. Right from the word go till the release. Creative people, marketing people, this is something which started the trend of marketing films in this kind of a way, where television was at a very nascent state, and we took advantage of that. We were lucky that we knew people. Anil, in fact, had gone to the Sharjah ground with the Mr. India outfit, tossed for a couple of matches, and he was there in the commentator's box dressed as Mr. India. Now, this is something which probably you all are not aware. I just thought I must say all this. It's all started, and it was only because we wanted to give our best for every aspect of this film. Not just the writing, making, even the release was well planned. So, should we end the session now? Thank you very much. सबसे पहला सवाल है, इंडस्ट्री में आपका रुझान कब हुआ कि फिल्मों में यार मुझे आना ही आना है? तो ये कब माइंड सेट हुआ कि यार मैं फिल्म में आऊँगा? फिल्मों में आना है, आई थिंक जब 8 या 9 साल का था तभी सोच लिया था कि फिल्मों में आना है, पर किस तरीके से आना है, कौन से फिल्म करने हैं, आऊँगा या नहीं आऊँगा वो नहीं ठाना था. बट आई थिंक व्हेन आई वाज 16, जब मैं नॉटिंघम में था, इंडिया को छोड़ के बाहर गया था पढ़ने के लिए, तब मुझे ऑब्वियसली इंडिया की बहुत याद आती थी, फिल्मों की बहुत याद आती थी. तब मैंने ठाना था कि मैं करूँगा तो हिंदी फिल्म्स में आना है, तो मतलब वापस आके वही ट्राई करूँगा फिर मैं. किन फिल्मों से आप काफी प्रेरित रहते थे एक्सेप्ट चीची भैया एंड बाकी लोगों? एक्चुअली अभी जो हम लोग ने मामी में किया उसके बारे में ही किया था. सो आई गिव देम 5 फिल्म्स व्हिच इम्पैक्टेड मी. तो एक तो गाइड देव साहब की, देन देयर वाज अंदाज अपना अपना, देन लायन किंग, स्वर्ग एंड अमेरिकन साइको क्रिश्चियन बेल. ऐसे तो बहुत फिल्म है, दिल चाहता है, द डोज है ऑलिवर स्टोन की, जिम मॉरिसन के लाइफ के बारे में. सो देयर लॉट ऑफ फिल्म्स आई थिंक दैट हैव इम्पैक्टेड मी ओवर चाइल्डहुड. बट वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई डिड से इज दैट आई थिंक फॉर एवरी चाइल्ड, जब हम लोग बच्चे होते थे तो पहली चीज़ जो हमें इम्पैक्ट करती है वो है कार्टून्स. आई थिंक तो मैं भी वही, आई मीन एवरीवन हैज सीन कार्टून, सब लोग टॉम एंड जेरी सब लोग ने देखा है. जब मैं छोटा था तो स्वॉट कैट आता था या जॉनी ब्रावो आते थे, तो उस वक्त पे वो देख के मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता था. एंड आई वुड थिंक कि यार ये कैसे कैरेक्टर्स है, ये क्या कर रहे हैं. एंड आई थिंक वो जो इनहिबिशंस होते हैं जो एक कलाकार में होने नहीं चाहिए, वो उतार के फेंक दिए मैंने कार्टून्स देखने के बाद.
मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ. आई थिंक पूरी जो प्रेस है, फिल्म फ्रिटर्निटी है, वो आपसे इतनी इंस्पायर्ड है. आप छुपो मत. आप लगातार, मतलब आप जो हो 3 साल से, जब से मैंने डेब्यू किया आपने भी डेब्यू किया है, मेरे को लग रहा है आप छोड़ते नहीं हो. मतलब आपका मतलब जो पकड़ के रखा है आपने. आप अरुण हो, मेरे को पता है. मैं बहुत वरुण, अपने करियर को अगर आप देखते हो, अपने सॉरी मैं इनका कंप्लीट, सॉरी क्या बोल रहा था मैं? मतलब वो लोग फील करने देते नहीं है ज्यादा. वरुण, मैं ज्यादा कुछ नहीं फील करता हूँ. जो फील करने देते फील करता हूँ, जो नहीं बोलते नहीं करता हूँ. नहीं, मैं कुछ नहीं, मतलब अच्छा ही लगता है. अभी माई फिल्म्स हैव डन वेल, सो ऑब्वियसली लोग मुझे थोड़ा दूसरी अंदाज में देखते हैं, मिलते भी डिफरेंट अंदाज में. बट आई एम द सेम ओनली. मतलब कुछ आई डोंट नो हाउ टू बिहेव. मतलब मुझे पता नहीं है कि अगर आपके फिल्म्स अच्छे करते हैं तो आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, अगर बुरे करते हैं तो कैसे बिहेव करना चाहते हैं. आई एम ट्राइंग टू बिहेव द सेम ओनली. आई थिंक स्टूडेंट ऑफ द ईयर के वक्त मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि बिहेवियर कैसे होना चाहिए, फर्स्ट फिल्म ऑब्वियसली. बट आई थिंक आफ्टर दैट लगातार मैं अपना बिहेवियर सेम ही रख रहा हूँ. वरुण, अभी अपने अगर आप करियर को देखते हो अपने, तो आपकी कौन सी ऐसी मूवी है जिससे आपको लगता है यू हैव रीइन्वेंटेड योरसेल्फ, और मूवी दैट हैज चेंज्ड योर लाइफ? Definitely, I think Badlapur would be that film that changed my life, and I always say this. I'm very thankful to all of you all also, क्योंकि आप लोगों ने बहुत support किया उस film को. So you all are a big part to make that film a big hit. But besides Badlapur, I think ABCD2 भी जो हाल ही में आई थी, I worked with so many new guys who are doing so well on TV now also. So I feel very proud कि मेरा association रहा उन लोगों के साथ. हर फिल्म मुझे कहीं ना कहीं impact कर लेती है और एक change लाती है मुझ में. तो दिलवाले के बाद भी थोड़ा बहुत चेंज आया है मुझ में. अभी डिशुम करूँगा तो वो भी एक चेंज लाएगा. I don't know if it's right or wrong. I think it's a very, as a viewer, I feel it's a very exciting time for cinema goers. अगर आपको फिल्म देखनी है, उसी दिन पे 2 बड़ी फिल्में रिलीज हो रही है, तो बहुत exciting चीज़ हो जाती है. Oh, I can go see this one. Oh, I can go and see that one. In that sense. But having said that, हम लोग ने बहुत मेहनत की है दिलवाले पे. We've not left any stone unturned. Rohit Shetty has been working day and night to make sure that we get you all the best film possible. बहुत ही बड़ी फिल्म है. You can expect everything that you need to expect from this film, and it'll still hopefully surpass your expectations. And I think the whole idea behind the film is to just make a good film that everyone enjoys this Christmas. Hi Varun. Hi Varun. Box office wise, I don't I mean, I guess little bit, I guess both could be affected by that matter, but I think हमारे फिल्म का नाम ही दिलवाले है, so हम लोग कोशिश करें कि हम लोगों के दिलों में एक जगह बना ले पहले. So I'm actually not that worried about Dilwale, because Shahrukh Khan है फिल्म में, so I don't think I'm that worried on that. Hi Arun. Can you share something about him that one doesn't know? Something that someone doesn't know. That so besides obviously the filmmaking and everything, okay, one thing that probably for every budding actor would be interested in this. So हम लोग हमेशा फिल्में में देखते हैं कि जब हीरो को चोट लगता है तो खून, they put that blood. तो the blood that most actors use is bad. The blood that he uses, शाहरुख खान का जो खून है जो वो लोग यूज करते हैं, वो असल में it looks like real blood कि किसी के खून से बन के बना है. It's so detailed and so real. I think that's why he's one hero, I think, who bleeds very well on screen. And there's a technique to this which he's taught me. And उनके जो खून का बॉटल है मेरे पास है. कृष्णा है क्या तुम्हारे पास अभी? हाँ है. देना मत किसी को. So I've got that bottle and I've written SRK's blood. And that's something that I will not use myself also. I'll keep that as a memory. And there's a technique to the way he bleeds, and he showed me that. So I think that's one thing that I guess a lot of people don't know. Another thing is that if he's an outstanding father. I've never met a father like him. He just goes weak in his knees when it's related. Like, I hope that one day if I become a father, I can be as good a father as he is. Being as busy as he is, he'll still go out of his way to make time for his children, which is commendable, I think.
I had most definitely played with him, and I think he's very fond of me. But I will not talk much about him because I know Shah Rukh sir has been warned by Gauri ma'am not to talk about Abram. तो मैं तो बात ही नहीं करना चाहिए मुझे. हाय वरुण, यहाँ पे सब डायरेक्टर्स अभी जो है सब फिल्म मेकिंग को एज अ मनी मेकिंग करियर में जानते हैं. कौन से डायरेक्टर? बहुत सारे डायरेक्टर्स, एक्शन जैक्सन, सिंग इज ब्लिंग, ये सब नॉर्मल मूवीज है, मगर बोले इन लोग ने, ऐसा बोला है लोग ने? सब बनाते वैसे ही है. मैं अच्छा, मैनी फिल्म डायरेक्टर से मैंने अभी बात की है 2 दिन में, जो कि इंटेलिजेंट सिनेमा बनाते हैं, आर्टिस्टिक, बट उनकी वैल्यू नहीं है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए. डिस्ट्रीब्यूटर उनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं दे रहे, यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. मेरे से क्यों पूछ रहे हो? आम जनता से पूछो ना, जो जाके पिक्चरें देखते हैं. वही मैं बोल रहा हूँ, एक आर्ट डायरेक्टर के लिए एक एक्टर क्या रोल प्ले कर सकता है. जैसे बल्लापुर आपने की है, तो बाकी सारे डायरेक्टर्स क्या इस वे में कब सोचना स्टार्ट करेंगे? See, honestly, I think it's actor to actor and director to director. Eventually, the most important, I think it's very wrong कि हम लोग बोलते हैं कि जो commercial films बनाते हैं वो मतलब they're making films for the wrong reason or to only make money, or people who are making intelligent films are making it for the right reason. Because I think like मैंने हाल ही में तितली देखी, and I'll say it, I think it's the most brilliant film I've seen recently. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई. फॉर्मूला मूवीज है, तो उसके आगे एक्टर्स कब ये स्टेप लेंगे, कब ये बियॉन्ड थिंकिंग होगी? अनलाइक वी लुक फॉरवर्ड टू द वेस्ट कि हम लोग को वहाँ जाना है, हॉलीवुड तक पहुँचना है, टू अ न्यू डिमेंशन. आई थिंक जो फिल्में चलती है वो ऑडियंस चलाती है. जैसे हाल ही में प्यार का पंचनामा 2 has really worked. It's a A-rated film, but it's gone on to do such amazing business with 3 of these boys and the director, and I've heard it's a very good film also. तो ऑडियंस ने चलाई उस फिल्म को. पहले तो हम लोग बोलते थे कि ये फिल्म भी क्यों चलेगी, सब नए हैं, बट चल गई. ऑडियंस ने चलाई. ऑडियंस को तो आप वही दिखाएंगे ना जो ऑडियंस देखेगी. नहीं, अरे चोके नो प्रॉब्लम. नहीं, अरे नहीं, आप बोलो. बोलो, टेंशन मत. सिंपल यही बोलना चाहता हूँ, ऑडियंस को तो जो आप दिखाएंगे वही दिखाएंगे. करेक्ट. और जनरली यहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, आपको लग रहा है कि ऐसे ज्यादा इंटेलिजेंट फिल्म्स बन रही नहीं है या फिर उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है. जैसे क्योंकि 2 दिन में मैंने बहुत सारे इंटेलिजेंट डायरेक्टर्स से बात की है. हाँ. तो बट अच्छा, बोल दो बेचारे को बोलने दो. बहुत दबा हुआ है, उसको बोलना है. बोल से डोंट फील बैड. बहुत सारे इंटेलिजेंट डायरेक्टर्स से बात की है जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन में फिल्म्स है, उनको फंडिंग नहीं मिल रही है. दे वांट टू मेक अ आर्ट सिनेमा, बट उसके लिए ना कोई इंस्टीट्यूशन ना कोई जगह है. जैसे हॉलीवुड में आप देखेंगे फिल्म रायट, बहुत सारे डायरेक्टर्स के लिए स्पेस है, स्क्रीन स्पेस के लिए बुक्स है. ऑनेस्टली आई फील फॉर दीज फिल्म मेकर्स द फिल्म्स आर मेड, लाइक जैसे हाल ही में कन्नू बेल की तितली लगी. सो आई फील इट्स नॉट ओनली एक्टर्स. आई थिंक मैं आपको भी कह सकता हूँ कि आपको भी सपोर्ट करना चाहिए, आपको भी उनके बारे में ज़्यादा लिखना चाहिए. लाइक आई वेंट एंड सॉ तितली, मेरे को बहुत पिक्चर पसंद आई है, मैंने काफ़ी जगहों पे बोला है. आई थिंक आयुष्मान ने भी देखी थी, उसको भी पसंद आई. तो आई थिंक एज अदर एक्टर्स हु आर नॉट इन दोज फिल्म्स वी कैन डू दैट. बट अभी जैसे मैं दिलवाले कर रहा हूँ, मेरे को जेन्युइनली दिलवाले की स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई, मुझे जेन्युइनली वो रोल बहुत पसंद आया. अभी उसमें गाड़ी उड़ रही है, वो लोगों को पसंद आ रही है, तो मैं क्यों उड़ रही है तो उड़ाएंगे लोग. आपसे इसलिए क्योंकि आप प्रमोट करते हैं इन बदलापुर. I get your point. Varun, Shah Rukh has everything. What is that one thing that you would like to give him? What is the one thing that I would like to gift him on his birthday? There's not much that you can gift him, like you said, because he has everything. But I think the one thing that I would like to gift him on his birthday is that I know कि वो PlayStation के बहुत बड़े fan हैं, तो PlayStation 4 हम लोग खेलते हैं, so जब PlayStation 5 आएगी बाहर तो मैं वो gift कर दूँगा उनको. Varun, Shah Rukh and Kajol are considered to be one of the greatest pairs in Bollywood. Having seen them in action, what do you think is so special about their chemistry that no other pairs have been able to achieve? I don't know. You know, they just have this kind of chemistry or aura around them that you feel like two people in love have, or two people who've been in love for so many years have. And both are extremely unique and amazing in their own way. They just bring that electricity, that chemistry, I think, on the set, where when they are standing in the same frame especially, it just happens. It's like putting on a light in a room. अपने आप हो जाता है. Also, recently a survey revealed that perhaps Ranbir and Deepika could become the next Shah Rukh Kajol jodi. What do you see? How do you see it? I have no idea about the survey and stuff like that. I guess that I don't know, each one to themselves. Ranbir and Deepika are the Ranbir and Deepika of this generation, I'd say. And मेरे को लगा तालियां बज गई. ठीक है. Ranbir and Deepika. Ranbir and Deepika are the Ranbir and Deepika of this generation, and so on and so forth. I think each one has to be themselves. Well, Varun, talking about
talking about your next film, Dishum, unfortunately your co-actor John had faced an injury and because of which the shooting had to be stopped. So did you face any difficulty regarding the dates? Like, Actually, it became easier for me because I was 60 days in Hyderabad and I was flying directly to Abu Dhabi for that shoot. So now, because of John's injury, I've got some time in between. So I'll finish my dubbing and all for Dilwale, and then we are going to shoot for Dishum from the 12th of November in Bombay. But no action stuff, little easy stuff. And when John's fully healed, then we'll go back and start beating up people together. Varun, you've directed a short film where during We your should not talk stint- about this. No, The but I wrong- want to ask you Why? something about it. There was a clipping sometime back when it was uploaded by Arjun himself. So you've spoken about your inspirations, regarding films, actors, directors. So during directing that film, did any of those inspiration come into mind, or it was just everything on your own? मैं बहुत भिखारी डायरेक्टर था उस वक्त पे. मुझे कुछ 500 रुपये मिले थे वो फिल्म बनाने के लिए और एक मारुति 800 जो हम लोग ने किसी दोस्त से ली थी. एंड खाली मेरे पास एक बहुत बड़ा एक्टर था अर्जुन कपूर, जो अर्जुन कपूर था भी नहीं उस वक्त पे. तो हम लोग बस ऐसे रोड पे भाग रहे थे और वी ट्राई टू मेक द फिल्म. I don't know, yeah. Maybe I'll make a film or I'll make something later on. I don't expect it to be something normal. You intend to direct in future? I don't. This will become a headline or something. I don't intend to do anything. I intend to only act. I love all my directors. Thank you. Yeah. No, I'm actually very excited to see Arjun. I think वो बहुत अच्छा करने वाले हैं and खतरों के साथ तो वो खेलते हैं रोज़. अभी आएंगे इधर तो बहुत भारी आवाज़ में बात करेंगे आप सबके साथ. बट मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. इनफैक्ट आज रात को हम लोग बाहर जा रहे हैं तो उनको पूछना कि आप हैलोवीन के लिए किसके साथ जा रहे हो और किन किन लड़कियों को बाहर लेके जा रहे हो. अर्जुन सर, सबसे पहला सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि फिल्म फेस्टिवल्स. पहले तो मैं आपको सब आगाह कर दूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सिर्फ बात करेंगे तो काम की बात करेंगे. कोई उल्टे सीधे सवाल जिसने कहीं पूछे तो आप जानते हैं मैं कैसा हूं. जी सर. थैंक यू. मैं पहले आपको जरा बता दूं. सो प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग दैट आई विल नॉट अप्रिशिएट. थैंक यू. जी, ये फिल्मी मेला है, फिल्में दिखाई जाती हैं, तरह तरह के लोग देखने आते हैं. इस तरीके की चीज़ों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? जैसे मुंबई फिल्म फेस्टिवल हुआ या कोई भी किसी भी देश में फिल्म फेस्टिवल रखा जाता है, तो आप इस चीज़ से कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपको कितना सुदृढ़ लगता है ये कार्य? देखिए, मेला तो आज के दिन का है. मेला तो 365 दिन लगा रहता है फिल्मों का. ये सिलसिला तो कब से जारी और चलता ही रहेगा. हम फिल्म वाले हैं. ये फेस्टिवल होता है कि हम फिल्म वाले अपने जो जौहर जो होते हैं, हमारे जो वेयर्स होते हैं, हम उन्हें इस वक्त दिखाते हैं. सो इट्स काइंड ऑफ क्रिएटिंग एन अवेयरनेस फॉर सिनेमा, फॉर फिल्म्स. एक फिल्म के माध्यम को एक रवानगी देने के लिए कि चीज़ होती है. सो इट्स अ गुड थिंग. एंड जो नए युवा लड़के हैं जो आ रहे हैं अभी डायरेक्शन के क्षेत्र में या एक्टिंग के क्षेत्र में, उनके लिए सर एक क्या मंत्र देना चाहेंगे? सफलता और विफलता को किस तरीके से उन्हें लेना चाहिए? मैं कोई गुरु तो हूँ नहीं जो उनको मंत्र दूँ. मेरा तो यही कि मैं तो हर बार यही कहता हूँ किसी भी नौजवान को कि लेट सक्सेस नॉट गो टू योर हेड एंड लेट फेलियर नॉट गो टू योर हार्ट. ये बच्चों में हर क्षेत्र में जो भी नए युवक हैं जो कदम रख रहे हैं, उनको तो इमीडिएटली प्रेस बटन सक्सेस चाहिए ना, कि इंस्टेंट सक्सेस होनी चाहिए. कभी कभी नहीं होती हैं. और इसका एक आपको मैं उदाहरण दे सकता हूँ. रणबीर को भी पहली पिक्चर में कहाँ सक्सेसफुल मिली थी. पिक्चर तो उसकी फ्लॉप हो गई थी. पर लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी. कोई चीज़ आसानी से नहीं आती. यू हैव टू वर्क फॉर इट. तो आप मेहनत कीजिए. फल अपना बाद में अगर जब होगा तो आएगा. पहले अपना कर्म तो पूरा करो. तो मेरा यही हर दफा होता है कि डू नॉट गेट डिस्करेज्ड बाय फेलियर. वर्क हार्ड एंड आई एम श्योर सम टाइम इन द अदर यू विल फाइंड योर फुटिंग. पानी जब होता है तो अपना लेवल अपने आप देख ही लेता है और पहुंच ही जाता है.
There are a lot of dreams unfulfilled. Any actor's, any journey is never fulfilled. We are always yearning and looking for greener pastures, for better roles, for better creativity. We all want to do good work. We all want to do different kind of roles. I'm enjoying this innings of my life. I'm enjoying every bit. Though sometimes you hit, sometimes you don't get the kind of roles which you should get. Sometimes you do not get the kind of roles. Sometimes you get the roles. So yeah, it is like, it depends in your lifestyle. So you have been part of film industry since quite some time, but how do you look at the current change? I've been part of the industry before you were born. For many years. So So we don't want to tell the years about you. So, I'm not going to ask. No, I'm not asking that. But how do you look at the sudden change that we've been seeing in terms of content? And secondly, which actor or which director's work you've enjoyed You watching? give me one question at one time. What did you say first? The first question is, how do you look at the sudden change that we've been seeing in terms of content? Like, content-driven movies are coming See, up. content क्या है? आज की तारीख में भी रीमेक बनती है. तो कंटेंट कोई चेंज तो नहीं हुआ. उस वक्त डॉन चली थी, आज के दिन में भी डॉन चलती है. तो आई एम रेडी टू एक्सेप्ट योर फैक्ट दैट एनी सिनेमा हैज गॉट टू बी एंटरटेनिंग. कोई बोरिंग सिनेमा हो तो नहीं चलेगा. अगर बोरिंग बनाना है तो आप फ्री में दिखाओ ना टेलीविजन में. आप एंटरटेनमेंट टैक्स देते हो. आज की तारीख में बहुत बड़ी रकम होती है फिल्म की टिकट. फिल्म की टिकट के बाद पॉपकॉर्न, कोका कोला, चाय, कॉफी वो भी लगता है. So there has to be some form of entertainment. Entertainment in our country is very important. But having said that, आज की तारीख में एक ऑडियंस और उभर के आ गई है. That is who are ready to take content-driven films. हट के फिल्में जिसे बोलते हैं. I'm not saying a word called art film. There's nothing called art film. मैं जो काम अगर डांस करता हूँ या मार पिटाई करता हूँ, that also requires art. So don't say those films are art. Our films are also art films. Those are films which are boring films. जो बहुत बोर करती हैं फिल्में, इसलिए लोग नहीं जाते उनके थिएटर में. उनको दिखानी चाहिए फ्री टेलीविजन में. आपको दिखाना है सिनेमा, आपको दिखाना दिल बहलाना है, तो आप बनाइए एंटरटेनिंग. हाँ, कभी फिल्में बहुत अच्छी होती हैं, कभी बहुत बुरी होती हैं, लेकिन उनका मकसद ये होता है कि हम पिक्चर बनाएं एंटरटेनिंग. सो कंटेंट विल ऑलवेज बी किंग. जब भी आप कंटेंट के साथ पिक्चर बनाएंगे, वो हमेशा अच्छा रहेगा. वो तो हमेशा चलेगा. अच्छा कंटेंट तो हमेशा चलता ही है. And the second question was that, when Ranbir entered the industry, he has achieved a name for himself in the industry for quick success he has achieved. He has not achieved quick success. He has gone through his ups and downs, but he has made a mark for himself. Apart from Ranbir, which actors' work you enjoy, and directors, if you could name anyone that... No, that's a very long question, my dear. You have to ask me generalized questions. हाँ जी. एक्टिंग करनी चाहिए. अरे एक्टिंग होती है और क्या करेगा वो यार. नहीं, अब ये बात दूसरी है. ये आपका प्रश्न सही है. जी, काम अच्छा मिलना ना मिलना वो तो आपकी तकदीर की बात है. लेकिन आपको जो आपका कर्तव्य है कि जो काम मिले वो तो आपको ढंग का करना पड़ेगा. मतलब जो आपको काम मिलता है वो तो आप अपनी नियत से वो ढंग का करिए, अब सही कीजिए. दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऋषि सर, हर आदमी, हर शख्स को has the right to express his opinion. They have expressed their opinion. I have nothing to say on that. Rishi sir, in the 90s, an actor who made his debut with you today, a couple of days later, he will be celebrating his 50th birthday, is Shah Rukh Khan. If I had to ask you to go back into the past, what was your first reaction like when you saw him? How did you see him as an actor during the Deewana days, if you could? Well, he was always a very spirited boy, always a very joshed up actor. And he came from television, and I remember him telling me that, on his very first onset, he had the opportunity of working with 3 actors that he admired, and he got a chance to work with Nasir in a film, and Nana in one film, and me within one film.
And I was very privileged that he took my name, and I said thank you to him. But as a youngster and as a first beginner in that film, he was very respectful, very very good to speak to. He was always full of energy. I remember those days, and I have a very funny anecdote which still take a long time, but I have mentioned that in my book. So please read it when that book should come out. Thank you. Sir, any other anecdote which you would like to share? All with that will be in the book. क्या है कि मैं एक्टिंग से फुर्सत नहीं निकल रही मुझे, और मेरा प्यार, मेरी पहली मोहब्बत एक्टिंग है. So I'm busy with acting and I'm enjoying and I'm loving doing this work. तो पहले मैं अपने आप को अच्छी तरह स्थापित कर दूं as a second time as a good character actor. फिर देखेंगे अगर दोनों जिंदगी रहेगी तो उसमें फिल्म डायरेक्ट भी करेंगे. ऋषि जी, चौक एंड डस्टर में भी हमने सुना आपका कैमियो है, अगर सही हाँ है जी. ये तो कुछ बताना चाहेंगे कि कैसा? फिल्म जब आएगी तो तब देखिएगा, मैं उसके बारे में भी क्या कहूँ. अब जरा एक आखिरी क्वेश्चन हो जाए तो मैं जाऊँ, मुझे और एक और जगह जाना है प्लीज. जस्ट लास्ट क्वेश्चन. थैंक यू. आप बोलिए. Mr. Kapoor, you just had a master class right now, some time back. Master class are usually held by people or actors maybe who have mastered the art of cinema or acting. If you had to actually sit through a master class and listen to someone who has mastered the craft of acting, who would that be? You know, on the very onset, if you were there in that, did you hear me out? Yes, My opening sentence was that I am no master to hold a class. In all humility, I'm just an actor. I'm just here to actually talk about my journey of over 4 decades, my anecdotes, my meeting, my people reacting, interacting with people. So that was what was all about. I respect actors who are very good with their craft. I respect a lot of actors, and it will be very unfair to just name few of them. There are few actors who do some brilliant work. There are actors who do good work. So I respect all of that. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. I must take your leave now. Yep. नहीं, तबीयत एकदम ठीक है. ये हील हो चुका है, यहाँ मुझे फ्रैक्चर हुआ था, वो अब हील हो चुका है. एवरीथिंग इज आउट एंड आई एम बैक टू वर्क. तो हाँ जी, सॉरी मैं देखिए, सबसे तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये है ओके सबसे खुशी की ये बात है कि इस किस्म का एक फेस्टिवल यहाँ हो रहा है, और आज मैंने आके जो देखा है, जो एक फेस्टिव माहौल बना हुआ है यहाँ पे महबूब स्टूडियो में. मुंबई जहाँ मुझे लगता है दुनिया का सबसे ज़्यादा सिनेमा बनता है, वी मेक द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फिल्म्स इन द वर्ल्ड. वहाँ ऐसे तो कई फेस्टिवल्स होने चाहिए. तो ये एक मामी ने बड़ा इनिशिएटिव लिया है, काफ़ी लोगों ने इसमें मेहनत की है, अनु ने, किरण ने, और बहुत सारे लोगों ने मिलकर इसको थोड़ा एक फेस्टिव फीलिंग देने की कोशिश की. बड़े बड़े फिल्में आए हैं, बड़ी फिल्में आई हैं अक्रॉस द वर्ल्ड. तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग कि जहाँ इतना सिनेमा बनता है वहाँ तो ऐसे कई फेस्टिवल्स होने चाहिए. सर, अभी किन प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं, क्योंकि पता नहीं चल रहा है, कभी रणवीर की बात आती है, कभी संजय दत्त की बात आती है, तो एग्जैक्टली कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं लाइन में? नहीं, फिलहाल हम स्क्रिप्ट वाइज तो हम कई फिल्मों पे काम लिख रहे हैं. जो एक रेडी हो चुकी है वो संजू की बायोपिक है, वो रेडी हो चुकी है. वो अगले साल होपफुली हम शूटिंग शुरू करेंगे. मुन्ना भाई पे भी एक काम कर रहे हैं. कई सालों बाद एक ऐसा स्क्रिप्ट मुझे लगता है कि हमको मिला है जो हम जो उस लेवल का है. यानी हमने इस वक्त इतने साल मुन्ना भाई इसलिए नहीं बनाई कि हमें ऐसा लगता था कि उसको बीट करना चाहिए, जो हमने पहले बनाया उससे बेहतर होनी चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनाने का. तो अब कोई ऐसा स्क्रिप्ट मिला है जो लगता है कि उस कैलिबर की फिल्म बन सकती है. So See, it was, I think, a very pompous topic to, say, how do you write a blockbuster? We didn't even know it was titled like that till we came here, and we were shocked. Very honestly, I think none of us know how to write a blockbuster. And the first thing is,
as we said in the session inside, that the first thing you should do is not to attempt to write a blockbuster. The moment you attempt to write a blockbuster, you're trying to say, okay, I know what that person like, I know what that person like. You have to make a film for yourself, what you like, and then hope that the rest of the world like it, because you will be able to do a good job of what you like. The moment you attempt to do what somebody else likes, you will fail. Inside you said that you were a little skeptical, if you can say so, while writing a biopic on Sanjay Dutt, especially the underworld part. Can you say a bit more on that, and what exactly said that you should go ahead and write the script and make a film eventually? I think we'll let the film come. The film is far off. But only thing I can say is, yes, I was skeptical because I said that's a world it's not one of my favorite worlds. But the moment I heard that story, Abhijat and me sat with him for 25 days, and I discovered that this is a story which we want to say because it's a human story. It's hugely entertaining. I think it's probably the most entertaining film we would ever do. It's emotional. It's got a lot of funny moments. It's a human story. It's a story about father, son, his friends, his world. So it's a story which is completely in the same league as the kind of cinema we've done. So would you be a little biased towards... No, sorry. So would you be a little biased considering... I will not be biased because that was my first... No, I cannot. I have always said in every interview, I've said that the film is not intending to glorify him at all. So it's not only Sanju, we met 10,000 other people, and I will never in my life make a film. Film is spending 3 years of a life on something. I can't make a film to glorify somebody. Never. I will make a film which is honest. Otherwise, I can make a film every year. I take 5 years to make a film. And if I'm going to spend so much of time, I don't need to. We have other scripts. There's no need for me to make this film. The only reason we're making this film is because it's a great story. I was just adding to that, one of our abiding principles is that every scene that we write should have LCD, laughter, crying, or drama. That's a principle that we have followed for 10 years. That in our films, you will not see scenes which are not entertaining or moving or have great drama. And of all the films that we have written, we felt that in Sanju's life, every scene has that quality. There's either huge laughter or crying or drama. अभिजात मेरा सवाल ये है कि लेखकों की बात हो रही है, लिखने की बात हो रही है, तो इसमें एक किस्सा जुड़ा हुआ था पीके से कि जो इंसेप्शन के करीब स्क्रिप्ट पहुंच चुकी थी और फिर आपको दोबारा लिखना पड़ा. तो एक लेखक के बतौर या जब फिल्म लिखते हैं तो वो एक इनर जर्नी क्या होती है, क्योंकि कई बार होता है कि आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ किस्से उड़ाते हैं, कोई इंसिडेंट आपको याद होता है, तो जब वो फिल्म पूरी बदलनी पड़ी तो क्या फ़र्क पड़ा फिल्म पे? फिल्म पे असर तो ज़रूर पड़ा क्योंकि हमने तकरीबन 1 साल काम किया था. 1 साल के बाद हमें पता चला कि हमारा जो आइडिया था जिस पे हम काम कर रहे थे, वो इंसेप्शन जो फिल्म आई हम देखने गए तो हमें लगा कि ये फिल्म तो वैसी ही है काफ़ी हद तक. तो हमें लगा कि ये अगर 1 साल हमने मेहनत की है, लेकिन अगर ऐसी की ऐसी फिल्म जाएगी तो लोगों को लगेगा कि हमने इंसेप्शन से इंस्पायर होके लिखी. तो एक उसका सदमा तो पहुंचा ज़रूर, लेकिन फिर हम और उसे कैसे पेश करने लगे इसी आइडिया को, क्योंकि हम आइडिया में हमारा बिलीफ बहुत स्ट्रांग था कि हमें यकीन था कि ये अच्छा आइडिया है, ये एक एलियन आता है और रिलीजन को देखता है, ये ग्रेट आइडिया है, तो इसे हम छोड़ेंगे नहीं, तो किसी और ढंग से उसे पेश करें. तो उसमें काफ़ी टाइम गया, 2 साल और लग गए फिल्म. ब्लॉकबस्टर फिल्मों की बात कर रहे हैं. आपके हिसाब से एक ब्लॉकबस्टर फिल्म क्या है? वो जो खूब करोड़ों में कमाती है या वो जो लोगों के दिलों को छूती है? बिकॉज हमने बहुत सारी ऐसी फिल्में देखी जो पैसा कमाती हैं बट लोगों के दिलों को नहीं छू पाती या लोगों से इतना याद नहीं रखते, और कई ऐसी फिल्में भी हैं जिन्हें लोग सालों तक याद रखते हैं बट वो शायद बॉक्स ऑफिस पे उतना कमाल नहीं कर पाती. तो ब्लॉकबस्टर का डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट आपके हिसाब से क्या है? नहीं, पब्लिक साइके में ब्लॉकबस्टर का डेफिनेशन तो वही है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग फिल्म देखने जाते हैं और वो फिल्मों की ज़्यादा टिकटें बिकती है. पर अगर आप मुझसे कहें कि मुझे क्या चूज़ करना है कि ब्लॉकबस्टर या हार्टबस्टर, तो आई विल चूज़ अ हार्टबस्टर. मेरे लिए वो ज़्यादा मायने रखता है कि जैसा आपने कहा, बहुत अच्छा आपने कहा कि फिल्म याद में रह जाए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कि फिल्म चले, 2 हफ्ते चले, अगले साल किसी को याद ही नहीं रहे, पैसा तो कमा ले मगर अगले साल याद ही नहीं रहे, उसका कोई मतलब नहीं है. हम आज भी जो पुरानी फिल्मों को याद रखते हैं, मेरे हिसाब से वो दे बिग फिल्म्स. आज आपकी फिल्में ऐसी हैं जिन्हें लोग सालों तक याद रखेंगे. आई होप सो.
नहीं देखिए, हम लोग एक्चुअली जब लिखते हैं तो खास कोशिश ये करते हैं कि उस टाइम कास्टिंग ना सोचे. मुन्ना भाई है तो ऑफकोर्स संजू रहेगा, वो तो डिसाइडेड है, संजू एंड अरशद विल बी डेफिनेटली देयर. पर क्या होता है जब आप लिखते हैं और आप एक एक्टर सोचने लगे तो होता है कि आप उस एक्टर की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस से इन्फ्लुएंस होने लगते हैं. यू से यार ये अच्छा करेगा या ये अच्छा नहीं कर पाएगा, तो आप वैसे लिखने लगते हैं. आई थिंक राइटिंग शुड बी फ्री फ्लोइंग, कि आप लिख लो उसके बाद कास्टिंग सोचो. तो अभी तो हमारा लिखने का प्रोसेस चल रहा है, कास्टिंग तक हम पहुंचे ही नहीं है. Raju, a follow-up question to that. Raju, so when you decided to work on the Sanju biopic, did you have Ranbir in mind right from the start? Yeah. See, now in case of biopic, yes, it was a question. See, biopic, what was happening that it's not a story we had to really write or create from scratch. When you're writing a story, you're creating and you're moving in many directions and finally you reach a script. This script, when he heard it from Sanju, when he heard his life story from Sanju, we knew ki, okay, more or less this is it. So we had a script in mind and we had to think of an actor. So Ranbir definitely was the most obvious choice for us because he's a friend. No, we're going to touch everything. No, it will be part of it. Everything will be part of the biopic. But it's a way we say is the story. Everything will be. And without that, there's no story. That will be a part of his life. See, films become successful, films can fail, whatever, but you really can't. Those are your life, those are your memories, those are your things which have happened. You really can't cut off from that. But we tend to look at every film as a new film, as a first film, and we strive as hard on any film. It's not that, oh, I've had a successful film, so I have to strive less hard. No, every film you have to strive as hard. Films, you will make films which will succeed, you might make films which will not succeed tomorrow. So, but if you strive less and if it fails, then there'll be a problem. So there's no lack of striving. That's why we take so much of time. We are not in a rush to, at this stage we can pick up and say, okay, we can make one film every year, we can make 2 films every year, but after 3 Idiots, I took 5 years to make one film. So most people find me stupid. He says, you know, you're being very stupid, you can make so much of money, but I don't think any of us is striving to do that. We are striving to make films which we want to make and good films. Hopefully, we might succeed or fail, that's a different story altogether. But there's no lack of effort in whatever we were doing. देखिए, मुझे लगता है डायलॉग होने की ज़रूरत है. मुझे लगता है कोई भी प्रॉब्लम एक डायलॉग से सॉल्व हो सकता है. बातचीत से कोई भी इशू सॉल्व हो सकते हैं. अगर हम बातचीत से उसको सॉल्व ना करें, हम सिर्फ एक दूसरे को नीचा गिरा के दिखाने की कोशिश करें, उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है. प्रॉब्लम है, देयर इज अ प्रॉब्लम व्हिच एग्जिस्ट, वी हैव टू एक्सेप्ट. फर्स्ट वी हैव टू एक्नॉलेज कि देयर इज अ प्रॉब्लम व्हिच एग्जिस्ट. उसको हम एक्नॉलेज करेंगे और हम अगर मिलके अक्रॉस द टेबल बैठ के बात करेंगे तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगा. हम सरकार कहे कि नहीं कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करता, स्टूडेंट्स कहे नहीं ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दोनों अपने अपने घरों में बैठ कर उसको सॉल्व एक दूसरे की तरफ इगोइस्टिकली देखते हैं तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा. आई थिंक वी नीड टू कम टुगेदर. द आंसर इज गेटिंग टुगेदर एंड सॉल्विंग इट. नहीं, मुझे नहीं लगता. मैं अभिजात लिखेगा थ्रिलर? पता नहीं. अगर कभी ऐसा लगे कि कोई, हाँ, इवन संजू की कहानी में थ्रिलर
के एलिमेंट्स हैं या इवन हाँ अभी आज जैसे हम बात कर रहे थे सडनली मुझे याद आया कि 3 इडियट्स में भी 20वें मिनट पे सुसाइड है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सीन है। पीके में ब्लास्ट है, सिर्फ उसका जूता रह जाता है। तो उन्होंने जब भी ये अटेम्प्ट किया है तो सक्सेसफुली हैंडल किया है। तो देयर इज़ अ ट्रिमेंडस ग्रेविटास टू सम ऑफ द फिल्म्स। ह्यूमर इतना होता है कि वो नोटिस नहीं होता, लेकिन वो एलिमेंट्स ऑलरेडी उन्होंने सक्सेसफुली हैंडल किए हुए हैं। तो कभी ऐसा मौका मिलेगा, कुछ मज़ा आ जाएगा किसी स्टोरी में तो लिखेंगे। अभी जो काम हो रहा है मुझे बहुत सारे कई लोग जो अभी अच्छा लिख रहे हैं। अब कल ही जूही चतुर्वेदी से मुलाकात हुई, वो ऐसा लग रहा है कि लोग नया कुछ लिख रहे हैं। और आई थिंक मुन्ना भाई MBBS के बाद एक तरीके से मुझे ये लगता है कि वो बिलीफ राइटर्स का वो आया कि वी कैन डू डिफरेंट थिंग्स एंड वी कैन सक्सीड। सो लंच बॉक्स, पान सिंह तोमर, ये विकी डोनर, पीकू और भी क्वीन, यू नो, ये सारी फिल्म्स यूनिक लगी। राजू को और भी याद आएंगी। आई थिंक मुझे लगता है कि वक्त बदल गया। आप 10-15 साल पहले देखिए, 15 साल पहले का सिनेमा एक ही किस्म का सिनेमा होता था, हीरो हीरोइन, आइदर लव स्टोरी और एक्शन, उसी दायरे में उतने गाने, वही किस्म के गाने, वही स्विट्जरलैंड में जाके शूट करना। वो माहौल बदल रहा है। आज अलग अलग किस्म का, एक मसान भी बन रही है, एक टिपिकल मेन स्ट्रीम कमर्शियल, यू नो, इधर एक बजरंगी भाईजान भी बन रही है। हर किस्म का सिनेमा बन रहा है और लोग जा रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक वी आर लिविंग इन ग्रेट टाइम्स फॉर सिनेमा। सी आइडियली वन वुड वांट कि बेहतर तो सबके लिए हुआ कि एक ही फिल्म एक दिन पे आए, पर जैसा कि उस दिन मैंने कहीं शाहरुख ने कहीं कहा कि 52 हफ्ते होते हैं साल में और फिल्में बनती कुछ 200 से ज़्यादा, तो अब करेंगे क्या, कहीं क्लेश होगा ही होगा। I am a very brutal man when it comes to scripts. Completely, the story is the thing for me, and that was a precondition with Sanjay, and I should say that he's been completely bold about it. That we've told him that we're not going to glorify you in any way. We are going to say the story as is, because I'm aware that if I'm dishonest to the film, this is the question which is going to come every day to me, that you made this film because you're a friend to Sanjay. No. I want to be very true to the film. Once you see the film, you'll realize, oh God, you know, we've really gone in. And Sanju is being very, very honest about it. Our precondition was that if you don't tell us the story honestly, you're not going to make it. अभी तो नहीं काश ना लगे, hopefully. हाँ जी. I think Wazir is releasing 8th. Vinod is the right man to ask that. I'm not there. तो कबीर सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि फिल्म मेकिंग का एक्सपीरियंस आपका कब से शुरू हुआ, जिसके बारे में थोड़ा आप जिक्र करना चाहें मीडिया वालों के साथ। इतना बड़ा सवाल। छोटे में सर समराइज कर सकते। फिल्म मेकिंग का मेरा, जैसे आप जानते हैं अभी जिसके बारे में मैंने बात किया, यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्री बैकग्राउंड है, मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाता था और मेरे जो एक्सपीरियंसेस थे एज ए डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, स्पेशली अफ़गानिस्तान में, वो मैंने लिखना शुरू किए और उनसे एक स्क्रिप्ट बनी काबुल एक्सप्रेस, जो फिर मेरी पहली फिल्म बनी। उस स्क्रिप्ट बनने के बाद, स्क्रिप्ट लिखने के बाद काफ़ी टाइम लगा मुझे प्रोड्यूसर से मिलने में, एक्टर्स से मिलने में, 1 साल कम से कम गया। मुश्किल था उस ज़माने में, मल्टीप्लेक्सेस थे नहीं, तो ये मल्टीप्लेक्स किस्म की फ़िल्म जो आप टुडे इट विल बी क्लासिफाइड एज दैट, मुश्किल होता था। लेकिन फाइनली 1 साल के बाद यशराज फिल्म से एक फ़ोन आया मुझे, जो पहले मैंने सोचा कि मेरा कोई बकरा बना रहा है, क्योंकि मिनी MTV में थी और मुझे लग रहा था कि ये मैं जाऊंगा यशराज और वहाँ गेट के बाहर से साइरस ब्रोचा कूदेगा और मेरा बकरा बना देंगे। लेकिन फाइनली मैं गया और ब्रोचा वहाँ था नहीं। मैं अंदर गया और आदित्य चोपड़ा
मिले। तब तक तो हमने सोचा था आदित्य चोपड़ा हैं भी, एग्जिस्ट करते हैं या नहीं पता नहीं था, लेकिन किसी और ने मेरी स्क्रिप्ट उनको दे रखी थी और उन्होंने पढ़ी और उन्होंने बोला कि तुम्हारी स्क्रिप्ट मुझे बहुत अच्छी लगी, व्हेन कैन वी स्टार्ट। बस वैसे ही शुरू हुआ फिर काबुल एक्सप्रेस की जर्नी, और उसके बाद फिर एक 3 फिल्म कॉन्ट्रैक्ट मेरा था यश राज के साथ। सफलता और विफलता को किस तरीके से देखते हैं सर, क्योंकि अभी एक पल आप रेस को भी देखते होंगे एक बार। जी, आई थिंक इस फिल्म इंडस्ट्री में जब सक्सेसफुल होते हैं आप तो बिल्कुल ही ऐसे होता है कि दुनिया आपको राजा बना देती है, और जब आपकी फिल्म कामयाब नहीं होती तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि कोई आपसे बात नहीं करना चाहता। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बैलेंस्ड, लेवल हेडेड रहें। हिट्स और फ्लॉप, सक्सेस और फेलियर इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस इंडस्ट्री। कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं है इस इंडस्ट्री में जिसको हिट और फ्लॉप नहीं मिले होंगे। तो आई थिंक अगर आप अपना काम करते रहें, जिस तरीके की फिल्में आप बनाना चाहते हैं आप बनाते रहें, और अगर लोग देखना चाहेंगे वो कहानियाँ, सुनना चाहेंगे आपकी कहानियाँ, आपकी फिल्म देखते रहेंगे। यू शुड टेक सक्सेस एंड फेलियर इन स्ट्राइड। ना सक्सेस से बदलिए ना फेलियर से। Hi sir. So your last film Bajrangi Bhaijaan is a universal success. Even on television it did wonders. And you have always said that you'll work with Salman again for the 3rd time. And now that Ek Tha Tiger and Bajrangi are so successful and universally accepted, do you think there is an additional pressure on you because there will be a lot of expectations from your film? हाँ, मतलब एक प्रेशर बन जाता है, लेकिन वो प्रेशर मैं कभी लेता नहीं, बिकॉज ऑनेस्टली मैं आपको अगर बताऊं, अगर हम प्रेशर लेते तो हम बजरंगी भाईजान बनाते नहीं। क्योंकि अगर हम प्रेशर लेते कि एक था टाइगर ने 200 करोड़ करे थे उस टाइम पे, तो कन्वेंशनल लॉजिक यही कहता कि एक और एक्शन फिल्म बना लो, लेकिन एक्शन फिल्म हमने नहीं बनाई। वी वेंट फॉर अ फिल्म जो बिल्कुल ही वेंट अगेंस्ट सलमान्स इमेज, वो सब किया जो सलमान नॉर्मली पर्दे पे नहीं करते हैं, और वो जाके सलमान की सबसे बड़ी फिल्म हो गई है आज। तो आई थिंक वो प्रेशर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक सक्सेसफुल फिल्म का प्रेशर लेंगे कि यही बनानी है तो फिर आप ज़िंदगी भर वही फिल्म बनाते रहेंगे, और वो एज अ फिल्म मेकर इज़ नॉट एक्साइटिंग। आई थिंक जब आप सक्सेसफुल हैं दैट्स द टाइम जब आपको और पुश करना चाहिए नए आइडियाज़ के लिए, बिकॉज कोई आपको उस टाइम क्वेश्चन नहीं करने वाला है। आपके पीछे अगर एक ब्लॉकबस्टर है दे लेट यू मेक व्हाटएवर यू वांट टू मेक। तो आई थिंक कोशिश यही रहनी चाहिए कि अलग अलग फिल्में बनाएं, नई किस्म की फिल्में बनाएं, एंड सम विल वर्क, सम वोंट, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। कबीर सर, हमने देखा है कि आपकी पिछली कुछ फिल्मों में पाकिस्तानी टच होता है, लाइक जैसे कि बजरंगी भाईजान है, फैंटम थी, उससे पहले एक था टाइगर थी, तो कोई खास वजह है कि आपकी फिल्म में पाकिस्तान होता है? जी, एक्चुअली काफ़ी लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा है, एंड दैट्स ट्रू। एक हमेशा इंडिया पाकिस्तान का एक बैकड्रॉप काफ़ी फिल्मों में मेरे आया है। कोई ऐसा एक्चुअली डिलिबरेट नहीं था, कभी मैंने बैठ के ये नहीं सोचा था कि मैं एक ट्रिलॉजी बना लेता हूँ इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे। हुआ ये है कि मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि एक रियल कॉन्टेक्स्ट में दूँ अपने सिनेमा में, एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट हमेशा रहे। अब आई थिंक अनफॉर्चुनेटली जिस दौर में हम जी रहे हैं उसमें इंडिया और पाकिस्तान की हॉस्टिलिटी जो है वो काफ़ी मतलब डोमिनेंट हैं। जो पॉलिटिक्स हैं, स्पेशली कॉन्फ्लिक्ट पॉलिटिक्स जो हैं वो दे आर डोमिनेटेड बाय द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू कंट्रीज। तो इसलिए किसी ना किसी तरीके से कुछ एक एंगल इनका मेरे पॉलिटिकल बैकड्रॉप में आ जाता है, बट ऐसा कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं है। आगे होगा या नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, डिपेंड्स कौन सी कहानी मुझे एक्साइट करती है और मैं क्या नेक्स्ट लिखता हूँ। हम इस फिल्म को भी बहुत ही अप्रिशिएट करना चाहेंगे, तो क्या फील करते हैं आप इस तरह से जब? जी, ये सही कहा आपने। बजरंगी भाईजान देखने के बाद जब गीता ने बोला कि वो भी अपने परिवार से मिलना चाहती हैं, और फिर ये सारा एक प्रेस ने बात करना शुरू करी, सलमान भी चैनल्स पे गए, मैं भी चैनल्स पे गया, और एक्चुअली गीता वापस आ गई हैं हिंदुस्तान। सो इससे काफ़ी एक क्या कहूँ मैं, मतलब एज अ फिल्म मेकर इससे ज़्यादा मैं कुछ मांग नहीं सकता, क्योंकि हम लोग काफ़ी कहते रहते हैं कि हाँ सिनेमा एक ऐसी चीज़ है जो एक पावरफुल मीडियम है और लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। लोगों को, मुझे हमेशा लगता था कि लोगों को सोचने पे मजबूर कर सकती है, लेकिन बजरंगी भाईजान के बाद मुझे एहसास हुआ कि एक्चुअली सिनेमा लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। मतलब गीता असल में एक ऐसी लड़की है जिसकी ज़िंदगी पूरी बदल गई है बजरंगी भाईजान की वजह से। वो एक्चुअली वापस अपने वतन आ गई हैं। तो आई थिंक उससे एक थोड़ा सा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाता है, एक थोड़ा सा एक अवेयरनेस हो जाता है कि जो हम कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं मेन स्ट्रीम सिनेमा में, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत अहम है, और जो भी हमें करना है आई थिंक आगे से सोच समझ के करना चाहिए।
जी गीता ने एक्चुअली चैनल पे जब बात हुई थी मेरी और सलमान की उनसे, तो उस टाइम भी उन्होंने गीता ने बोला था कि वो जब वापस आएंगी हिंदुस्तान वो चाहती हैं हमसे मिले। अभी तो आई हैं वो, आई थिंक अभी काफ़ी प्रोसीजर और फॉर्मेलिटीज़ बची हैं, वो सब हो जाए, एक बारी वो सेटल हो जाए तो ज़रूर कुछ आई थिंक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें वो आके सलमान से मिल पाएँ। धमाकेदार या नहीं पता नहीं, लेकिन अभी मैं एक्चुअली छुट्टी पे हूँ। मैं सोच रहा हूँ क्योंकि 2 फिल्में नॉन स्टॉप मेरी आई हैं, तो काफ़ी 2-2.5 साल से मैंने बिल्कुल ही ऑफ नहीं लिया है। आई थिंक एज अ फिल्म मेकर, एज अ राइटर एक टाइम चाहिए होता है जहाँ आप बिल्कुल ही किसी स्टोरी के बारे में ना सोचें, सिर्फ बस अब थोड़ा बहुत एक घूमिए, थोड़ा सा किताबें पढ़िए, पिक्चरें देखिए, और फिर एक आइडिया आएगा, और जो आइडिया आएगा जिस पे थोड़ा सा मुझे एक्साइटमेंट होगी फिर मैं उसको परस्यू करूँगा। Kabir, hi. जी नहीं, अनफॉर्चुनेटली क्या आइडिया है वो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ बायोपिक एक ऐसा जॉनर है जो मुझे हमेशा एक्साइट करता है, बिकॉज मुझे लगता है कि हमें अपने कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री से और कहानियाँ लेना चाहिए। हम लोग बहुत कम करते हैं। अगर आप हॉलीवुड इंडस्ट्री देखिए तो वो बहुत ज़्यादा अपनी कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री बायोपिक से इतनी अच्छी अच्छी बेहतरीन कहानियाँ बनाते हैं। हमें करना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि आगे कुछ बायोपिक्स पे काम करूँ, कुछ पे रिसर्च किया भी है मैंने, लेकिन ऐसा कुछ लॉक नहीं किया है। Kabir, hi, I'm Sabah from Times Now. There's this news about the Supreme Court planning to examine a PIL filed against Santa Banta jokes. So, like to begin with Sardar jokes. Your thoughts on it? Because we've all grown up on them, and yes, definitely, it does involve a communal tension some way or the other. But your thoughts on the PIL and if there's a ban on the jokes? It's a very difficult issue to really comment on, because, as sometimes I do say that we shouldn't take ourselves too seriously, and, come on, humor has to be a part of our lives, and we should be able to laugh at ourselves also. Having said that, I think there's a certain line that one shouldn't cross. If it is definitely becoming derogatory to a certain community and unnecessarily sort of just targeting them, then somebody has to take it up and be able to see that humor should never be offensive. Humor should be something that whoever it's being directed at should be able to laugh along with it. If that line is crossed, then somebody needs to put it in check. While they say cinema and art, has no boundaries, here we are talking about a phase in our life here in our country where they say, actors from across the border are not really welcome in Mumbai. If, say, tomorrow in your film you would want to, have an actor from, say, Pakistan, how would you go about it when you feel that, okay, he fits the role and he would, bring that much credibility to your film also? I totally agree with you. I feel arts and culture is something that should be way beyond politics. I don't think politics should be allowed to enter the world of art and culture. Unfortunately, in the subcontinent, we've often seen politics coming and not allowing some singer or some actor from coming and performing. I think I don't agree with it at all. I feel that the more cultural exchange and the more people-to-people exchange we have with our neighbors, the better the atmosphere will become. Politically, yes, if we don't agree with something, we should put across a very strong point, and there are certain segments of certain countries which we do not have to agree with, but we should not put the responsibility of some sections onto everybody. So we can't say that the actions of a certain terrorist organization or a certain extremist organization in Pakistan, the responsibility of their actions cannot be put on the common man of Pakistan or their artists or their actors. There should be a free exchange of people coming. We should be able to go there. They should be able to come here and keep politics out of arts and culture. देश में अभी माहौल चल रहा है, लाइक कई सारे फिल्म मेकर्स हैं जो अपने अवार्ड्स लौटा रहे हैं इन नेम ऑफ लाइक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑल दिस थिंग्स. तो आप किस तरीके से देखते हैं, क्या ये प्रोटेस्ट का सही तरीका है? क्योंकि इससे पहले भी ये सारी चीज़ें होती थी, लेकिन आपको नहीं लगता कि ऑल ऑफ अ सडन ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये सारा फोकस जो है हमारा गलत जा रहा है. हमारा फोकस ये नहीं होना चाहिए कि फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट क्या है. अगर वो अवार्ड देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, दैट्स अप टू देम. बिकॉज अगर उनको लगा कि दैट्स अ वैलिड फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, उनको करना चाहिए. हमें ये देखना चाहिए किस चीज़ के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. एक माहौल हम सब जानते हैं हमारे मुल्क में ऐसा हो रहा है कि थोड़ा सा इंटॉलरेंस बढ़ रहा है. हम रोज़ देख रहे हैं ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसी कुछ घटनाएं जहाँ पे आदमी क्या पहन रहा है, आदमी क्या पढ़ रहा है, आदमी क्या खा रहा है, मतलब हमें क्या
क्या लेना देना आदमी क्या खा रहा है. आई डोंट थिंक वी शुड बी एबल टू, ऐसा एक माहौल बनना चाहिए कि जो हम अब एक दूसरे के चॉइसेस से बहुत इंटॉलरेंट हो जाए. मेरी फिल्म में जो चिकन सॉन्ग है बजरंगी भाईजान का, वो ये इसी पे एक कमेंट है कि अच्छा आप वैसे तो सॉन्ग को एंजॉय कर सकते हैं एट फेस वैल्यू, लेकिन वो इसी पे कमेंट है कि अगर कोई कुछ खाना चाहता है कि उनके खाने से हमारा धर्म भ्रष्ट नहीं होने वाला है. हमारा जो धर्म है, हमारे जो मजहब हैं, इतने डेलिकेट नहीं होते हैं कि किसी के खाने से वो टूट जाते हैं. आई थिंक वी शुड बी टॉलरेंट. एंड अगर ये एक जो इनटॉलरेंस का माहौल हमारे मुल्क में बन रहा है, अगर उसके अगेंस्ट कुछ फिल्म मेकर्स या कुछ हिस्टोरियंस या कुछ साइंटिस्ट प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट क्या है? अगर वो अपना अवार्ड वापस दे के वो चाहते हैं या वो समझते हैं कि उनको अटेंशन मिलेगा, दे आर वैलिड. अगर मैं बिना अवार्ड दिए भी प्रोटेस्ट करना चाहूँ, दैट्स ऑल्सो वैलिड. सो जोया, सबसे पहला सवाल बनता है कि कब आपके जहन में आया कि आप फिल्म के दिशा में आएंगी, फिल्में बनाएंगी, स्क्रिप्ट में काम करेंगी? आप प्लीज़ ये ज़रा बताएं हमें. जब मैं मेरे टीन्स में थी, जब मैं कॉलेज में गई थी, फिर क्या करना चाहिए, क्या करना है, पहले तो मैं सोच रही थी कि क्या मैं लॉ करूं, लॉ स्टडी करूं, लेकिन फिर मेरा इंटरेस्ट मीडिया में था, लेकिन फिर वो अर्ली 90s में फ़िल्में इतनी अच्छी नहीं थी, तो मुझे पता नहीं था कि मैं फ़िल्में बना पाऊंगी. यानी मुझे हिंदी फ़िल्में अच्छी नहीं लगती थी, तो मैंने सोचा कि मैं एडवर्टाइजिंग में चली जाऊं, और फिर मैंने सलाम बॉम्बे देखी एंड दैट वाज इट. बहुत फिल्में हैं, लेकिन सलाम बॉम्बे, आई थिंक मीरा नायर की सलाम बॉम्बे वाज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसेस, आई वुड से. नहीं, उसमें नहीं, मैंने असिस्ट किया था कामासूत्रा में. बीइंग अ फिल्म मेकर, जैसे सारे फिल्म मेकर्स अवार्ड रिटर्न कर रहे हैं, तो उस पर आप क्या सोचती हैं? मैं सोचती हूँ कि जो फिल्म मेकर्स हैं जिन्हें नेशनल अवार्ड मिला है, वो अपनी तरफ से एक साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक डिग्निफाइड तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, के हमें अगेंस्ट नहीं, लेकिन प्रोटेस्ट एंड अ टोकन मार्कर टू से दैट वी आर नॉट हैप्पी विद द वे द intolerance is growing in the country, and they have every right to do so. I think they are doing it in a very peaceful manner, and they are out there and saying that we do not like the kind of growing intolerance, and I mean there is growing intolerance. So Are you supporting them? I don't have an award to return, but am I supporting them? Do I support anyone that thinks that there is a growing intolerance? Yes, there is a growing intolerance. I mean, yes. At some point, yes. जोया, आप फिल्म मेकर हैं और बाकी लोगों की भी फिल्में देखती होंगी, तो कौन सी फिल्में आपको ज़्यादा भाई हैं पिछले 1-1.5 साल के बीच में? 1-1.5 एक्चुअली जब अपनी फिल्म निकल रही होती है ना, जब रिलीज़ हो रही है, तो आपको कोई टाइम नहीं मिलता है फिल्में देखने के लिए. तो ये इस साल में बहुत फिल्में हैं ऐसी जो मैंने अभी तक देखी नहीं है. अभी मैं कैचअप करने वाली हूँ. मुझे कॉट देखनी है, मुझे तनु एज मनु देखनी है, मुझे पिक्कू देखनी है. दीज आर द 3 फिल्म्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग, व्हिच आई हैव बीन टोल्ड आर इनक्रेडिबल. एंड अक्सर खबरें आती हैं कि ये प्रोजेक्ट आ रहा है, जोया ये कर रही हैं, वो कर रही हैं. आप ही बता दें कि कौन कौन सी फिल्में हैं जो आने वाले दिनों में आपकी तरफ? मैं अभी लिख रही हूँ. मैंने अभी रिसर्च स्टार्ट की है मेरी नेक्स्ट फिल्म के लिए, और रीमा काकती और मैं अभी शुरू किया है स्क्रिप्ट लिखना. तो शूटिंग अगले नेक्स्ट ईयर होगा. माई जॉनर टाइप, आई थिंक कमिंग ऑफ एज काइंड ऑफ जॉनर, लेकिन बॉम्बे स्टोरी है. कंटेम्प्रेरी बॉम्बे. No, I am asking something. Oh, sorry. कंटेम्प्रेरी अगर फिल्म मेकर्स की बात की जाए, काफ़ी एक्साइटिंग डायरेक्टर्स हैं, दिबाकर हैं, अनुराग हैं, श्रीधर राघवन हैं, बहुत सारे लोग हैं. कौन आपका फेवरेट है और कौन सी उनकी फिल्में आपको पसंद आती हैं? मुझे बहुत डायरेक्टर्स पसंद है. मुझे अनुराग बहुत पसंद है. मुझे अनुराग की कई फिल्में अच्छी लगती हैं. गैंग्स ऑफ वसेपुर, गुलाल. मेरी फेवरेट है ब्लैक फ्राइडे अनुराग के फिल्मों से. दिबाकर आई लव हिज वर्क. आई लव खोसला का घोसला, दैट रिमेन्स माई फेवरेट. एंड आई लाइक LSD a lot. I liked Shanghai a lot. I loved Queen, the one Vikas Bell made. I loved that movie. I really I mean there's so many, I can't think of them now, but there are many filmmakers I like.
मुझे उनके 70s के फिल्म्स बहुत पसंद हैं. ऑल द स्क्रिप्ट्स, त्रिशूल, दीवार, शोले, काला पत्थर, शक्ति. आई इवन लाइक शान. बायोपिक का चलन है, तो कोई बायोपिक की तरफ आपका रुझान जा रहा है? कोई जी है एक्चुअली, लेकिन मैं बात नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अभी तक मैंने साइन नहीं किया है, लेकिन है एक पाइपलाइन में. कौन से फील्ड से नहीं बता सकती हूँ. एंटरटेनमेंट फील्ड, इतना बोल दूंगी. Of course, Mr. India is one of my favorite films. I grew up watching it. I mean, it is also the film where, I mean, I saw that. I saw Masoom, then Mr. India, then Bandit Queen, and that's it. Shekhar Kapoor is one of my favorite directors. Let's just put it that way. Yeah. अभी कॉन्वर्सेशन शुरू हुई है, अभी स्टार्ट हुआ, अभी बॉल हैज जस्ट स्टार्टेड रोलिंग. अब तक पहुंचे नहीं है जहां पहुंचने चाहिए, तो लेट्स जस्ट कीप द मोमेंटम ऑन. I am very, very impressed with Anupama Chopra, Kiran Rao, Smriti Kiran. उन्होंने क्या किया है. The opening was absolutely beautiful. Gateway of India. It was just gorgeous. The films, the lineup of films, जो films दिखा रहे हैं, the filmmakers जो यहाँ हैं, ये सब जो चल रहा है, it's very, very impressive. It's very required. It's very needed. This city deserves it, and the city needs it. We need a space like this for cinema. So, I mean, I'll do whatever I can. Whenever they need me, I'm there. But I really want to thank them for making this happen. Okay, thank you. Thanks. फिल्मों का मेला लगा हुआ है, हर तरफ फिल्मों का ही जिक्र है. आपके भीतर कब ये बात जगी कि यार मुझे फिल्म की दुनिया में जाना है, फिल्मों को डायरेक्ट करना है और कहानियाँ लिखनी है? आइडिया कॉन्क्रीट हो गया जब मैंने शेखर कपूर की बैंडिट क्वीन देखी. उससे पहले हल्के हल्के थॉट से, लेकिन कॉन्क्रीट हो गया जब शेखर कपूर की बैंडिट क्वीन देखी. और अगर कनू बहल 93 में तितली बनाते तो तब भी शायद हो जाता, क्योंकि अभी मैं जितनी बारी तितली देख रहा हूँ मेरे को लग रहा है कि यार मेरे को फिर से फिल्म बनाना चाहिए, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ मैं कहीं अपने रास्ते से शायद हट रहा हूँ. अब शायद मेरे को वापस रास्ते पे आना है. तो कनू की जो फिल्म है वो मेरे को बता रही है कि यार वापस अपना रास्ता पकड़ो. पहला प्रोजेक्ट बना जयदीप साहनी के लिए. उन्होंने सोचा कि दिल्ली का एक प्रोड्यूसर होगा और दिल्ली का डायरेक्टर होगा और वो लिखेंगे और एक दिल्ली की कहानी होगी दिल्ली के एक्टर्स के साथ. वहाँ से इस आइडियलिज्म के साथ चालू हुई और उसके बाद 3 साल का बहुत लंबा सफ़र रहा, 4 साल का सफ़र रहा, और उसके बाद घोंसला का घोंसला बन पाई. तो घोंसला का घोंसला वॉज एन इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट एंड आई थिंक इट बिकेम पॉसिबल क्योंकि जयदीप, मैं और हमारी जो प्रोड्यूसर साहिबा थी सविता राज, हम सब बहुत ही इनोसेंट थे और वो इनोसेंस में फिल्म बन गई. मैं तो कुछ भी फिर से रिपीट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक बार जब एक कुछ हो जाता है तो आई गेट वेरी इम्पेशेंट टू गेट अवे फ्रॉम इट. तो रिपीट तो नहीं होगी. अगर जेन्युइनली फिर से कुछ आए वापस कोई इमोशन, जैसे बॉम्बे टॉकीज में एक फैमिली का इमोशन था, अगर कुछ वैसा कुछ वापस आए तो ज़रूर होगा. दिवाकर, बहुत सारी रियलिस्टिक फिल्में बनना शुरू हो गई हैं पिछले 10 सालों में. अनुराग भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हैं, श्रीधर राघवन बना रहे हैं. आपको क्या लगता है ऐसी कौन कौन सी फिल्में हैं जो आपको लगता है यार काश ये फिल्म मैं बनाता? आपको ऐसा लगता है कुछ फिल्में देखकर? जैसा मैंने कहा, बैंडिट क्वीन, मकबूल, अब तक 56, तितली अभी रीसेंट एग्जाम्पल है. तितली को जितनी बार भी देखता हूँ मतलब इतनी जेलसी होती है, इतनी ईर्ष्या होती है, मैं क्या कहूँ. मतलब और मेरे को मैसेजेस मिल रहे हैं, फैंटास्टिक फिल्म, ये रिव्यू, मेरा दिल जल रहा है. 4.5 5 स्टार, और मैं प्रोड्यूसर भी हूँ और डायरेक्टर भी हूँ, तो मन ही मन जलन भी हो रही है और खुशी भी हो रही है. तो तितली जैसा आई विश आई कुड मेक तितली. सर, आपको क्या लगता है कि 50s और 60s 70s के दौर के बाद आज की
दौर में फिल्म मेकिंग में कितना बदलाव आया है, लोगों का नज़रिया डायरेक्टर का, फिल्म बनाने का, प्रोडक्शन हाउस का नज़रिया कितना बदला है और क्यों? मेन जो चीज़ बदली है वो ये है कि फिल्म फाइनेंसिंग अब कॉर्पोरेटाइज हो गई है। फिल्म फाइनेंसिंग कॉर्पोरेटाइज होने की वजह से, फिल्म एग्जीबिशन, सिनेमा हॉल्स वगैरह कॉर्पोरेटाइज होने की वजह से फिल्म बनने के जो साधन हैं और उसमें से जो मेन है पैसा, वो पैसे की जो लागत है वो लगने के उपाय बहुत बढ़ गए हैं। इसलिए आजकल नए तरीके के फिल्म्स भी बन सकते हैं जो पहले शायद इतना नहीं बन सकते थे। दिबाकर सर, मेरा आपसे सवाल है, दिबाकर सर ये सर या मेरा आपसे सवाल है कि आपकी एज अ प्रोड्यूसर आपकी जो तितली को बहुत अप्रिसिएशन मिली, उसके कंग्रेचुलेशंस, बट हमने ऐसा सुना है कि आपकी जो लास्ट डायरेक्टोरियल थी डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, उसकी सीक्वल बनने वाली है, कितनी सच्चाई है इस बात में? पूरी सच्चाई है, और क्योंकि ब्योमकेश नंबर 1 आइडियाज़ और क्रिएटिविटी और एक नए तरह के जॉनर बनाने में बहुत सक्सेसफुल रही जी। और क्योंकि उसका कमर्शियल रिजल्ट इतना सक्सेसफुल नहीं था, मैं एक और फिल्म बनाऊंगा। वैसे भी प्लान ये था कि ब्योमकेश 1 के बाद मैं एक और फिल्म बनाऊंगा और ब्योमकेश 2 पे जाऊंगा। तो अभी मेरे को एक और फिल्म बनानी है जिसको एक कमर्शियल ठीक ठाक सक्सेस मिले और फिर मैं ब्योमकेश 2 पे जाऊंगा। मैं बिल्कुल स्टैंड कर रहा हूँ अपनी डिसीजन पे, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि जिनको लग रहा है ये गलत है, वो अपनी जगह पे अगर अपने कॉन्शियस से सही हैं तो वो सही हैं। क्योंकि मैं भी कह रहा हूँ ना कि कुछ गलत है, तभी तो मैं ये अवार्ड वापस दे रहा हूँ। अगर मैं अपने कॉन्शियस की बात फ्रीली कह सकता हूँ तो वो भी कह सकते हैं। प्रोटेस्ट का तरीका ना कभी कुछ बहुत प्लेजेंट सा नहीं होता। मैं मिठाई दे के प्रोटेस्ट करूंगा तो आप उसको प्रोटेस्ट नहीं मानेंगे, और अगर प्रोटेस्ट करना इतना खुशनुमा होता तो हम तो हर रोज शाम को 6 से 9 बजे अपने लेबर को बुलाते, आइए सर थोड़ा प्रोटेस्ट करते हैं। वो तो नहीं करते ना। प्रोटेस्ट अपने आप में एक खुशनुमा चीज नहीं है। जब आप प्रोटेस्ट करते हैं तो आप किसी चीज के आड़े आते हैं। जब आप प्रोटेस्ट करते हैं तो वो खलता है लोगों को, और वो ही नेचुरल है और वो ही द्योतक है कि ये प्रोटेस्ट है। नेशनल अवार्ड मैंने जो जीता, खोसला का घोंसला, उसमें सिर्फ मेरा काम नहीं है, उसमें सबका काम है। जयदीप का काम है, अनुपम खेर का काम है, सबका काम है। लेकिन वो अवार्ड जो मेरे नाम पे गया है वो मैं वापस दे रहा हूँ, मेरे लिए बहुत एक हैप्पी डिसीजन नहीं है। और तभी मैं कह रहा हूँ कि ये भाई प्रोटेस्ट है। अगर मैं कुछ चीज़ जो मैं बहुत नेचुरली खुशी खुशी करता हूँ, देखो मैंने लड्डू बांट दिए और ये मेरा प्रोटेस्ट है, आप हंसेंगे ना। प्रोटेस्ट तभी होता है जब मैं कोई चीज़ नहीं करना चाहने के बावजूद उसे करने पे मजबूर होता हूँ। बट सर उनका कहना सर एक्टर्स का कहना है कि वो सिर्फ आपका अवार्ड नहीं, उनका भी अवार्ड है और आपको पूछना चाहिए था उनसे देने से पहले, ऐसा वो कह रहे हैं। आधा वो सही है, बिल्कुल वो उनका भी अवार्ड था, लेकिन जब मैं वापस दे रहा हूं तो मैं उस अवार्ड में अपनी भागीदारी वापस दे रहा हूं। और उस अवार्ड में बतौर डायरेक्टर अगर मेरी कुछ भी भागीदारी है, मैं उस भागीदारी के बनस्बत मैं ये बोल रहा हूं कि ये अवार्ड वापस देके मैं लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूं, ताकि उनको पता चले कि मैं जो कह रहा हूं कुछ कह रहा हूं, नहीं तो मेरे पास और कुछ है नहीं कहने। मतलब मेरी बात कोई सुनेगा क्यों? क्योंकि मैं ना कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हूँ, बहुत बड़ा लीडर हूँ, या इतना भी बड़ा मैं फिल्म मेकर नहीं हूँ कि मैं कुछ बोलूँगा तो सब सुने। तो मेरे को ये जानबूझ के ये जो अप्रिय सत्य है, इस अप्रिय सत्य को एक अप्रिय तरीके से लोगों के जहन में लाना पड़ रहा है। तो मैं इस पे आता हूँ फिर उस पे आता हूँ। सबसे पहली बात तो सिर्फ अनुपम जी नहीं है। आप अनुपम जी को अकेले उनका नाम ले रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे काफ़ी सीनियर हैं इंडस्ट्री में जिन्होंने मुझे ये भी कहा है, क्योंकि मैंने उनको अपने डिसीजन के बारे में बताया था, उन्होंने कहा है कि मैं आपके डिसीजन से सहमत नहीं हूँ, लेकिन आपका विवेक अगर कहता है तो आप करो। नहीं, क्योंकि उनकी अनुमति नहीं है।
तो अनुपम जी जो कह रहे हैं अवार्ड्स के बारे में वो काफ़ी हद तक, कुछ हद तक सच है। दूसरी बात ये कि आपने क्या बोला, पॉलिटिकल। ये पॉलिटिकल है, हाँ ये पॉलिटिकल नहीं है। यहाँ पे मैं जब उनसे मिलूंगा तो उनको बताऊंगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये एजुकेशनल मामला है। FTII का जो मामला है वो शैक्षिक व्यवस्था का मामला है। ये ना बॉलीवुड का मामला है, ना मतलब बॉलीवुड का मामला हो सकता है, लेकिन सबसे पहले ये शिक्षा व्यवस्था का मामला है कि एक इंस्टीट्यूट में आप ऐसे गवर्निंग काउंसिल में ऐसे लोग डालें जो वो उस विद्या को ठीक से समझ सकें जिस विद्या को उस इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है। और हम यही कह रहे हैं, जिन्होंने भी अवार्ड दिया है, 12 फिल्म मेकर्स ने अवार्ड वापस दिया है, और जो स्टूडेंट्स हैं, जो एक्स स्टूडेंट्स हैं, वो यही कह रहे हैं कि फिल्म इंस्टीट्यूट में जो फिल्म विद्या की जो शिक्षा होती है, उस ऐसे इंस्टीट्यूट के गवर्निंग काउंसिल में ये जो 4 नाम हैं और जो चेयरमैन हैं, ये शायद इनके पास वो एक्सपीरियंस और वो कॉम्पिटेंस नहीं है जिससे कि वो फिल्म इंस्टीट्यूट को कुछ दे सकें। उनके पॉलिटिकल व्यूज़ चाहे कुछ भी हो, ये उनके पॉलिटिकल व्यूज़ के बारे में नहीं है, ये उनकी फिल्म के ज्ञान के बारे में है। दैट्स ऑल। ही इज राइट अबाउट द फैक्ट दैट ये जो अवार्ड है हम सबकी टीम का है, और जब मैंने वापस दिया है, इससे हमारी टीम के जो दूसरे मेंबर्स हैं उनको बुरा लग सकता है, लगा। I regret the fact that I am sad about the fact that they are hurt about it, but I expected it. लेकिन ये कुछ खुशी वाला डिसीजन तो था नहीं ना। ये तो मैं जान के ही मैंने डिसीजन लिया, और मुझे पता था कि लोग इस चीज से, कुछ लोग नाखुश हो सकते हैं। दिबाकर, नहीं, मैं अपनी कला का निरादर तब तक नहीं करूंगा जब तक मैं अपने विवेक पे अड़ा रहूंगा। मेरा विवेक गया, मेरी अंदर की सोच गई, वो मेरी कला का सबसे बड़ा निरादर होगा। मुझे किसी का कोई अवार्ड नहीं चाहिए। अगर ऐसी बात है और आप कह रहे हैं कि आप हमारा आदर करें तब जाके हम आपका आदर करेंगे, मुझे ऐसा वाला अवार्ड नहीं चाहिए। सर एक, अगर वो माने, अगर उनके पास वक्त है, उनके पास टाइम है, क्योंकि खुद वो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट चलाते हैं। परेश रावल जी, आपको क्या लगता है कि अगर अनुपम खेर जी का नाम होता चेयरमैन का, अगर परेश रावल जी का नाम होता चेयरमैन का, कोई भी स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है? अपने दिल पे हाथ रख के लॉजिकली सोचिए, कोई बोलता, ये नौबत आती, ये स्ट्राइक होते, हम हंसते ना अगर वो स्ट्राइक करते। तो उसी तरह आपने मिसाल पहुंची। आप क्या कह रहे हैं कि इनके जैसे और कोई नहीं है? वही हैं जिनका नाम है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में जो उनका, ये जो हैं अभी चेयरमैन है, इनके सिवाय और कोई नहीं है। दिल पे हाथ रख के लॉजिकली सच्चाई से बोलिए। दिबाकर, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि इस तरह की घटनाएं जो हैं, जो राइटर्स के जो मर्डर्स हो रहे हैं, इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, पहले भी होता रहा है, काफ़ी सालों से हो रहा है, अलग अलग सरकारों के वक्त हो रहा है, तब ऐसा इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं हुआ राइटर्स की तरफ से, साइंटिस्ट की तरफ से और फिल्म मेकर्स की तरफ से। अब क्यों हो रहा है? एक सवाल उठ रहा है, तो उस पर आपकी सफाई चाहूँगा। ये सवाल मेरे ख्याल से हर भारतीय नागरिक को खुद देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही किसी चीज़ से प्रोटेस्ट होता है तो एक पहला सवाल आता है, आपने तब क्यों प्रोटेस्ट नहीं किया? तब मैं स्कूल में था यार, इसलिए प्रोटेस्ट नहीं किया। नहीं, मैं अपनी मिसाल लेके कह रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। पहला सवाल ये आता है, आपने तब क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया? कोई कारण रहा होगा, उसका मतलब क्या है कि मैं प्रोटेस्ट नहीं कर सकता? जो गलत कल था वो आज भी गलत है, तो आज का जो गलत है वो सही कैसे हो गया? मैं तो आज भी खड़ा हुआ हूं ना। तो पहली मेरा खंडन ये है। दूसरा ये है कि बोलते हैं कि आप लेफ्टिस्ट हैं या राइटिस्ट हैं। मेरे को लगता है कि इसमें कोई लेफ्ट राइट का कोई चक्कर नहीं है। मेरे को लगता है कि आपकी कोई भी पॉलिटिकल चिंताधारा हो, उसके लिए अगर आपको मारा जाए तो वो गलत है। अगर आप एक राइटिस्ट हैं और एक लेफ्टिस्ट आके आपको मार दे, तो मैं सबसे पहले
उस लेफ्टिस्ट के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा, क्योंकि मैं ना लेफ्टिस्ट हूँ ना मैं राइटिस्ट हूँ। मुझे घर से ऑफिस सेफली जाना है, मुझे जो मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ लीगली मुझे फिल्म बनानी है, मुझे अपने बच्चों को फ्री शिक्षा, मतलब किसी भी तरह के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से फ्री एक शिक्षा देनी है ताकि वो अपनी आइडियोलॉजी खुद चुन लें। मुझे इसके सिवाय मेरे देश से कुछ नहीं चाहिए। और मुझे ये चाहिए कि जब मैं घर से जाऊं, ऑफिस जाऊं, कोई मेरे को गाड़ी से निकाल के बिना कारण मेरे को मारे ना या मेरे मुंह पे कालिख ना पहुंचे, सिर्फ इस कारण के लिए कि मैंने फील किया उसको मैंने डेमोक्रेटिकली एक्सप्रेस किया। मुझे बस ये 3 चीज़ें चाहिए एज नागरिक, और मैं जानता हूँ कि बतौर नागरिक बाकी सब भी यही चाहते हैं। मुझे ना लेफ्ट चाहिए, मुझे ना राइट चाहिए। पहली बात तो ये है कि इंडिया इतना गरीब है, इतना अनएजुकेटेड है और इतनी बेसिक कंट्री है, यहाँ पे लेफ्ट राइट का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे रोटी, कपड़ा, मकान और सेफ्टी चाहिए यार हमें। कितना हर्ट हुआ आपको ये सुनकर कि लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं? आपको कितना दुख हुआ ये सुनकर? अब वो दुख की बात चली गई, क्योंकि ये हमने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि ऐसा तो नहीं ना कि हमने पहली बार किया है ये, और या हम पहले हैं। हमारे से पहले बहुतों ने हर युग में पहले के गवर्नमेंट में भी ऐसे ही किया और उनको भी ऐसे ही बोला गया कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, ये सोशली मोटिवेटेड है। हम चाहते हैं कि जो हमारे शैक्षिक संस्थान हैं वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से फ्री रहें, चाहे वो कोई भी आइडियोलॉजी हो, लेफ्ट या राइट हो। और ये जो बात है, इस बात का सबसे बड़ा इफेक्ट हमारे पेरेंट्स, हमारे समाज में आप जो पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे होंगे, हम जो पेरेंट्स हैं और हम जो स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे साथ ये रिश्ता सबसे ज़्यादा है। ये मामला हमसे ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है बतौर किसी और के। I think you're wrong in saying that, I'm not getting support. The fact is that there are 12 people who return the awards, and there'll be more coming up. And I can tell you, the number of messages, the number of mails, the number of questions I've been asked, it's a matter of support. You know what? Anupam ji speaking up against it, in a way it's support, because he considers the matter important enough to speak about it. Therefore, I've managed to draw the people's attention. So I think I'm getting, and it's not me, don't turn it into a thing. I think what we are talking about, the citizens of India, we are getting a lot of support. अगर आपको ये FTII के चेयरमैन का पोस्ट ऑफर किया जाएगा तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं। FTI का चेयरमैन वही बन सकता है जो बहुत ज़्यादा सीनियर हो, जिसने करीब 20-30 साल तक, 40 साल तक फिल्म इंडस्ट्री के साथ बहुत हाई लेवल का काम किया हो। वो चाहे परेश रावल हो या सईद मिर्ज़ा हो या अनुपम खेर हो या जावेद अख्तर हो या विनोद चोपड़ा हो, इस तरह के नाम जहन में आते हैं। क्योंकि चेयरमैन जो बनते हैं उनका काम होता है गाइड करना, मार्गदर्शन करना, पथ प्रदर्शन करना। वो मैं कहाँ से करूँगा? मैं तो अभी अपना रास्ता ढूंढ रहा हूँ अभी। इसका क्या सोल्यूशन है कि हर सरकार जो आती है अपने लोग इंस्टीट्यूशन में बिठा देती है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी सरकार हो, अपने लोग बिठा, इसका क्या सोल्यूशन आपको? बहुत अच्छा सवाल है। ये जो हो रहा है ये पहले सरकार में भी हुआ है और आगे की किसी भी सरकार में हो सकता है। इसका तोड़ यही है कि हम सब जागरूक रहें, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स जागरूक रहें और हम ऐसी एक सिविक व्यवस्था बनाएं ताकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से अलग रहें। और काफ़ी इंस्टीट्यूट रहते हैं। मैं जिस इंस्टीट्यूट में गया था वहाँ पे तो पॉलिटिक्स का मतलब कुछ पी भी नहीं था। मैं जिस स्कूल में गया था वो तो आरएसएस का प्रोमोटेड स्कूल था। मैं जिस स्कूल में गया था दिल्ली में, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काफ़ी मेंबर्स, भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी मेंबर्स उस स्कूल के गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स थे। कभी हमको ऐसा नहीं लगा कि हमारे ऊपर कोई राजनीति थोपी जा रही है, कभी नहीं। हमको शिक्षा दी गई हिंदी सीखो, संस्कृत सीखो, लेकिन साथ साथ हमारे स्कूल में कव्वाली भी गाए गए, साथ साथ हमारे स्कूल में गालिब के मुशायरे भी हुए। हम चालू करते थे कव्वाली से, खत्म करते थे सरस्वती वंदना से। तो हमको तो कभी किसी ने कहा नहीं कि तुम ऐसे सोचो वैसे सोचो। और ये मेरा स्कूल है, मेरे स्कूल में गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स भारतीय जनता पार्टी के थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे, काउंसिलर्स थे, उनकी बेटी हमारे स्कूल में पढ़ते थे। मैं तो ठीक हो गया ना।
ठीक ठाक ही निकला हूं ना। उल्टे उस स्कूल से मैं निकल के आप मेरे को बोल रहे हैं आज मैं लेफ्टिस्ट हूं। कितना अच्छा स्कूल था वो, आप सोच सकते हैं कितना अच्छा स्कूल था कि विदाउट किसी पॉलिटिकल प्रेशर के उन्होंने मेरे को भारत की संस्कृति के बारे में सिखाया। तो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट दोनों स्कूल अच्छे हो सकते हैं, इसमें कोई लेफ्ट राइट की बात नहीं है। मैं खुद जीती जागती मिसाल हूं, मेरा स्कूल जीता जागता मिसाल है। सर आप मानते हैं कि I didn't know about this. Okay, all I can say is, and this is not about the PL, this is not about the Supreme Court. The real answer to this is that every society deserves its own sense of humor. A society has to decide how humorous it can be. Because humor is always at someone's expense, but humor is humor. थैंक यू सर। पहले तो वी ऑल फोकस्ड ऑन बाजीराव मस्तानी एंड इनफैक्ट यहाँ आने से जस्ट 1 घंटा पहले कुछ चाइना से लोग आए हैं जो चाइना के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हम उनको लेके बंसाली सर के ऑफिस गए थे एंड वी शोड देम अबाउट 35 मिनट्स ऑफ द फिल्म एंड द फर्स्ट थिंग दैट दीज गाइज सेड इज़ दैट वी आर रिलीजिंग दिस immediately. So it was fabulous, the response from them. So abhi puri company Bajirao pe focused hai. But next year we have about 70 films lined up and we are planning to go to about 150 in 2017 in 9 languages. तो चयन के बदले हमें एक्चुअली और पिक्चर्स चाहिए. We need more people to come to us. सर एक खबर कई दिनों से चल रही है कि एक ही डेट है, 2 फिल्में आ रही हैं, किस तरीके से क्लैश है। कोई कहता है यूएई में ऑलरेडी टिकट्स बिकनी शुरू हो गई हैं दिलवाले की, कोई कहता है बाजीराव इस तरीके से रिलीज हो रही है। तो इस पूरे मुकाबले को किस तरीके से देखते हैं आप? I think firstly this question Kishore can answer better because he's the chairman of the company. But जहाँ तक मुझे लगता है as a film buff, because मैं भी film buff था 8 महीने पहले और फिर फिल्में बनानी शुरू की, तो I think our market has really matured and evolved. और I think winter vacation का जो बड़ा break है उस weekend पे this market is ready for 2 big films. तो मुझे लगता है दोनों फिल्में अच्छी चलेंगी एंड मैं तो मतलब संजय बंसाली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, रोहित शेट्टी का भी फ़ैन हूँ. आई थिंक दोनों फिल्में अच्छा करेंगी एंड आई एम होपिंग दैट द ऑडियंस हैज़ अ ग्रेट क्रिसमस वीकेंड. आप लोग अलग अलग रीजन्स में भी जा रहे हैं, लाइक बंगाली फिल्में भी आ रही हैं और साउथ की भी फिल्में आ रही हैं, तो ये किसका आइडिया था, किस तरीके से इस पे इरोस ने? तो इसमें जैसे श्रीधर और हम लोग दोनों चेन्नई में थे 2 दिन पहले और बहुत ही एक्चुअली जिस तरह से रीजनल मार्केट्स इवॉल्व कर रहे हैं उसमें स्केल आ गया है. पहले लगता था कि रीजनल मार्केट में 50 लाख की फिल्म बनाओ मैक्सिमम वो 3 करोड़ करेगी. अभी कोई ग्लास सीलिंग नहीं रहा. बाहुबली ने ब्रेक किया है. तमिल में एक्चुअली वो लोग 50-60 करोड़ के बजट की फिल्में बना रहे हैं. बंगाल में मैंने अभी जस्ट बोला, अभी हमने सरदार जी जो पंजाबी में आया वो बहुत बड़ा हुआ. इस अगले पिछले 3 महीने में सबसे अच्छी फिल्म जो मैंने देखी है इन अ प्रीव्यू इज़ राज काहिनी, जो बंगाली फिल्म है श्रीजीत ने बनाई है. तो आई थिंक मार्केट्स आर ओपनिंग अप और हमें लगता है कि एज इंडियाज़ टॉप स्टूडियो हम 60 फिल्म से अगर 200 फिल्में बनाएंगे तो वो सब हिंदी से नहीं आएंगी. एंड ऑल लैंग्वेजेस में मतलब काम अच्छा हो रहा है. देखो काम जहाँ अच्छे राइटर्स है वहाँ काम बढ़ता ही आ रहा है. तो आई थिंक तेलुगु में, तमिल में, बंगाली में, पंजाबी में सब जगह काम चल रहा है. इनफैक्ट अभी हमने जस्ट अनाउंस किया कि हम एक फिल्म इंग्लिश, हिंदी और मैंड्रिन में बनाएंगे. तो इंडो चाइना 2 स्क्रिप्ट हमने लॉक किया है जो हम इस पर काम कर रहे हैं. अजीत, हिंदी सिनेमा में खासकर जो राइटर्स जो होते हैं वो नेग्लेक्टेड लॉट होते हैं, उन्हें मेहनताना भी ठीक से नहीं मिलता है. उनकी सबसे कम कद्र अगर किसी की जाती है फिल्म में, अगर कास्ट एंड क्रू में देखा जाए तो राइटर ही होता है. तो आप लोग नर्चर कर रहे हैं राइटर्स, इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आप लोग किस तरह से उनको ध्यान देने वाले हो या वो फ्रीडम देने वाले हैं लिखने की जिससे वो बहुत बेहतरीन फिल्में लिख पाएँ? सो थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. और ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है बिकॉज हमने ट्रिनिटी जो लेबल स्टार्ट किया इरोस में उसका फाउंडेशन इसी पर रखा है.
तो एक स्टूडियो के लिए 4 चीज़ें चाहिए होती है: प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर, राइटर। और वेरी ऑफन प्रोजेक्ट्स जो बनते हैं वो कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं। हमने डिसाइड किया है कि हम हमेशा एक ही जगह से स्टार्ट करेंगे, राइटर से, कि गुड राइटिंग एंड वील गेट अ गुड प्रोजेक्ट। और उसमें हमने, वी आर द फर्स्ट स्टूडियो आई थिंक इंडिया में, यूएस में ये होता है, जो हमने अपना राइटर्स रूम रखा है। तो अगर राइटर्स की कद्र दिखानी है तो द बेस्ट थिंग इज़ कि सब जगह हम स्टूडियोज़ में 500 एम्प्लॉय हैं पर एक भी राइटर नहीं है। नाउ ट्रिनिटी में हमारे साथ श्रीधर वो राइटिंग रूम को मेंटोर कर रहे हैं। हमारे पास 9 राइटर्स ऑलरेडी हैं और हम और खोज रहे हैं। हम कोलकाता, चेन्नई जाके कम से कम 20 राइटर्स हम लाना चाहते हैं। तो और उनको पूरी फ्रीडम है। इनफैक्ट इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिल रही है, क्योंकि वो अभी स्क्रीन प्ले लिखने के सक्षम नहीं है, बट उनको श्रीधर और बहुत सारे हमारे डायरेक्टर्स आते हैं, उनके साथ वो पिच करते हैं। इनफैक्ट 2 राइटर्स और श्रीधर नेक्स्ट मंथ चाइना जाएंगे वहाँ पे कहानियाँ बताने। तो इतना अच्छा एक्सपोजर आई थिंक हमारे राइटर्स को नहीं मिला है। एंड आई थिंक द मोर राइटर्स वी फाइंड, उतनी अच्छी फिल्में बनेंगी। तो ये कितने वक्त के लिए आप लोग नर्चर करने वाले हैं, राइटर्स को मौका देने वाले हैं? ट्रिनिटी का पूरा बिजनेस प्लान इज़ बेस्ड ऑन राइटर्स रूम। तो हम ये राइटर्स हमारे साथ हमेशा रहेंगे, कुछ जो एक्सपीरियंस होने के बाद बाहर जाएंगे और हम नए लोगों को लेकर आएंगे, बट वी आर कमिटेड टू ट्रेनिंग देम। मेरा टारगेट है, श्रीधर से हम बात करते रहते हैं कि हम अगर 2017 में हमारी 5 फिल्में रिलीज़ हुई तो उसमें कम से कम 2 या 3 हमारे राइटर्स के कॉन्सेप्ट होने चाहिए और बाकी बाहर के। तो मतलब वो कंपनी So I don't know if you've read about Trinity. So when we set it up in February as part of Eros, the one thing that we have been very clear about, that in Trinity we'll only invest in franchise films, because I feel that any studio must have a USP. So for us the USP is franchise films, and that's been fabulous. So I hear lots of good standalone scripts and I pass on them to my colleagues in Eros, and we are only focused on franchise films, and it's a fabulous advantage. From 2008 onwards, look at Hollywood box office any year. Of the top 10 films, 8, as many as 8 every year have been franchise films. And they have been not built like the way we do sequels. Film is worked, after 3 years somebody starts writing a sequel. We are actually writing it in a way that when we lay out the universe and the characters, we know the 3 films before we'll start writing the first film. So we will only do franchise films, Marvel being the closest model in that sense, but not just superheroes. We will borrow from our history, our mythology, our popular culture, and build a whole series of franchise films, and we'll do nothing else but franchise films. कोई टारगेट रखा है अजीत की साल में इतनी फिल्में प्रोड्यूस करनी है, या कुछ ऐसा टारगेट रखा है अपना वेरियस लैंग्वेजेस? सो इरोस का टारगेट क्लियर है। फ्रॉम 65 हम जाना चाहते हैं 200 फिल्में 2 साल के अंदर, और ये फिल्में हम 9 लैंग्वेजेस में सोर्स करेंगे, और इंग्लिश और मैंडरिन तो 11 लैंग्वेजेस हो गई। लेकिन मेरा टारगेट बहुत डिफरेंट है। इन ट्रिनिटी हम सिर्फ 5 फिल्में बनाएंगे 1 साल की, बिकॉज दीज आर बिग फ्रेंचाइज फिल्म, दे विल बी इवेंट फिल्म्स, एंड वहाँ से स्केल अप करेंगे। Absolutely, Meluha series is not available, but I would have gone for it if ever becomes available. I don't know if you know, it's with Dharma, but big fan of literature. So one of the things that Sridhar and the writers room do is when we give a brief, let's say let's focus on history or teens, we look at original ideas and we are just scouring for books. We are looking at every book possible in every language to look at that, because I believe literature gives you a certain sense of that it is accepted as the characters and the story is already liked. So you have a starting point. So absolutely, if I had my way, I would like go and buy out every book possible which can make a franchise film. So मैं टेलीविजन से आया हूँ, so I love television, but हम एक जनरेशन स्किप कर रहे हैं उसमें। So हम लोगों ने पूरा टेलीविज़न का बिजनेस प्लान बना कर रखा हुआ है, और शायद किसी दिन करेंगे, बट अभी द बिग थिंग वी आर फोकस्ड ऑन, अपार्ट फ्रॉम एक्सपैंडिंग आवर फिल्म स्टूडियो एंड मेकिंग आवर ओन प्रोडक्शंस, इज इनटू डिजिटल. दैट वर्ल्ड इज गोइंग टू एक्सप्लोड द काइंड ऑफ कंटेंट. सो और जो जितनी सारी कहानियाँ जो मैं टीवी में नहीं बोल पाया, अभी आई एम मेकिंग देम एज प्रोड्यूसर फॉर इरोस नाउ, एंड इरोस नाउ इज ऑलरेडी एट good momentum. That market is just opening up. So we're going to go hammer and tongs behind digital first and then do TV in the future. सर एक और सवाल है कि ट्रेलर सबसे पहले इरोस नाउ के पेज पे आता है rather than YouTube या और कहीं, तो ये किसका सोच है, और
इसे किस तरीके से Why not? I mean, हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारी फिल्म्स हैं. नहीं, We have मैं millions ये of कहना चाह रहा हूँ कि ये अच्छी बात है कि किसी और प्लेटफॉर्म की जगह अपनी प्लेटफॉर्म पे हाँ. आ रहा है. तो ये किसका आइडिया था, किसने ये आइडिएट किया था कुछ? I have no idea, but must be Kishore's. Because Eros Now is his baby. But it's just, you know, YouTube is just an aggregator. We are building a platform which actually allows a lot of content to go, you know what I mean. So we will build our platforms, and competition is great. So Eros Now will compete with Hotstar and Hulu and Netflix, and that's what it is supposed to be, because it's infinite, the amount of time people have to watch good content. एंड श्रीधर सर, आपसे भी जानना चाहेंगे किन विधाओं में अभी और फिल्में आने वाली हैं और कौन कौन से जॉनर्स आएंगे, किन विधाओं में और फिल्में बनाने वाले हैं आप, और कौन कौन से genres? या Yeah, we're looking at every genre here, from history to war to teenagers. Seriously, because the idea is we've got so many young writers. I don't want to tell them कि आप ये करो वो करो. The idea is what they come up with. You know, we don't want to curb them or restrict them in any way. If they feel this will be interesting. See, I'm like 45. There's somebody in my team who's 20. They have a perspective on the world which I may not. So they may tell me this is exciting, this is what people are keen of my age to watch. I'm totally open, he's totally open. So frankly, we will never put a lock and say, not this genre. No, no, no. Come to us with anything, we're happy. We'll discuss it, and if it seems typical or boring, we'll say, no, yaar, ye nahi. But if it seems like, yeah, we can do something exciting, then great. The idea is that it should be fun, that's all. Thank you, sir. Cool. Thank you so much. Thank you very much. Thank you.